So actually, I met him at BNI Okay, very nice. a few years back. अच्छा, So, then he also left BNI. I also left BNI. अच्छा, okay. He was Uh, not part for long ना, BNI ज़्यादा देर नहीं किया उन्होंने. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो खैर मेरे से ज्यादा देर किया उन्होंने. अच्छा, And then since he was a CA, he was organizing his GST meetings and all that. So I continued my touch with him, and I recently did his workshop also. So in that workshop also he was taking your name. अच्छा. So in that tech mastery from Sanjeev Jain and all that. So nice, So so nice. हाँ. since I'm also a member, I also attended NRPN. So that So you Mr. are in the NRPN group. आप NRPN group के अंदर भी. या आई एम इन द NRPN ग्रुप. अच्छा, वहीं से आपका मुझे लिंक फर्स्ट टाइम मिला था. अच्छा. ओह, और वहीं से फिर मैंने आपकी फ्री फ्री क्लासेस एक बारी साइबर फ्रॉड पे आपने करी थी. हाँ, राइट, एक राइट. बारी आपने और की थी तो मैं वो ज्वाइन किया था मैंने. और फिर मैंने आपका टेक एसेंशियल, since you can understand my age, so I am not so technical savvy, right? हम्म. So, but then we are into custom clearance activity, right? So we Okay. are a team of about 25 persons, and we are doing customs clearance for our clients who are all MNC clients, Okay. and with them we have to do a lot of email communications. So we have about 20 users on the email, and of course I can't do emails. I can only read emails, and I can forward the emails. Beyond that, I have not been able to improve myself on technical aspect. So But what then is my the name team, of your company, Patak sir? Anji, What is the name of your company? SD Pathak and Company. Okay. S for So Simla, D for Delhi, Pathak and Company. अब आपके बच्चे भी देखते हैं इसके अंदर आपके साथ में? हाँ, अभी तो नहीं देखते, लेकिन they are expected to join, right? हाँ. Okay, So okay, I have my team. I have got a senior manager operations who had actually attended your tech essentials, okay, because I wanted my team members to understand, because we have been using the IT things as a very ad hoc or manner, in the sense when we started using email. So we took our domain, whatever I know, I'm telling you. right, right. Please go ahead. We took our domain from Rediff Mail a couple of years back, right? My domain is sdp.in. Okay, And then we took emails also services from Rediff Mail, and we are paying them on yearly basis. And then we were using outside outsourced softwares. For example, for some time we used Outlook, okay, and then our systems became obsolete. We changed our systems. Then then my team told me they were using EM client also as an outside software. I don't know why, but for a okay, few years we were using Rediff web services only for our email also. So now EM client we were using free version, right? My teammates. हम्म, तो फ्री वर्जन को यूज कर रहे थे, तो अब ईएम क्लाइंट में दिक्कत हो गई. अब हम्म. वो वाला मेल बंद हो गया ईएम क्लाइंट का, तो मे बी दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग. सो since dealing with MNC clients, I feel a bit bad that we are using hit and trial basis things. We are not using the genuine or real good services required. So then I told them that we did your G Suite free course also. I made them attend that also. I Okay, told them that you are doing, because we are using Excel sheets in our communication with our clients, right? right. And Excel sheets से Excel में काम होता है हमारा. Then I told them that Sanjeev Jain is telling that G Suite is better than Excel. So why don't you listen to him, attend to his workshop, and then Hmm. try to build that, adopt that into our company? Hmm. How can we use it in a better way? Because Right. everybody is looking for advancement or betterment, so we should also look for betterment. So they did attend that, and but then and they also, then I made them attend tech essential course also, right? So So in you did not do it yourself. जो टेक एसेंशियल अभी हुआ था आपने खुद नहीं अटेंड किया, आपकी टीम ने. नहीं, मैंने खुद नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ना इतना टेक्निकल, क्योंकि आपने कहा लैपटॉप होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मेरे को ये लैपटॉप में, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू डू दैट.
then I thought my manager will be able to do more justice to understand your things. So then I made him attend that, and then he gave me the feedback. सब वहाँ पर जितने भी लोग थे, they were all users of the G Suite. So उनको वो चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रही थी, और क्योंकि हम लोग जी यूजर्स नहीं है, तो मुझे समझ में तो आ रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा समझ में नहीं आई थी मेरे को। तो ये उनका फीडबैक था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, देन आई टॉक टू सिद्धार्थ जैन, सिद्धार्थ जी ऑफ योर टीम। मैं राइट। यार जी सूट की वर्कशॉप कब करोगे? बिकॉज अगर हमारे को जी सूट को समझना है तो पहले तो जी सूट की फुल डे वर्कशॉप करें, समझें उसके अंदर की उसकी पूरी क्या चीजें हैं। और उसके बाद फिर सिद्धार्थ जी ने कहा कि अभी हमारे क्लाइंट्स का टाइम है कि डेट नहीं मिल रही क्योंकि वो बल्क में करते हैं आप लोग। तो बट देन सिद्धार्थ जी वो सेइंग कि आप टेक मास्टरी कर लो। मैं कहा नहीं यार, टेक मास्टरी में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना सर, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए वी हैर हमारे ऑफिस में कोई जैसे साइबर सिक्योरिटी के एंगल से भी मेरे ऑफिस में कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास 20 ईमेल्स हैं, हमने एक कंप्यूटर को बनाया हुआ सर्वर, राइट, और उसके थ्रू हम लोग अपना काम करते हैं। बैकअप के लिए हमने लेनोवो का एक 4 टेराबाइट का वो पोर्टेबल वो लिया हुआ है, हार्ड उसी में हम लोग वीकली बैकअप करते हैं, राइट। मगर वो भी एक कभी बाई चांस वो गिर जाए तो वो फिर उसका वो भी खराब हो जाएगा। तो वो भी एक रिस्की अफेयर ही है। हालांकि मैं वो बैकअप अपने 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 घर पे लेके आता हूँ, आई डोंट कीप इट इन माय ऑफिस। सो वीकली बैकअप करते हैं। गुड और प्रैक्टिस। और हाँ जी सर। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ब्रिंग इट टू होम इज अ गुड प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा प्रैक्टिस है जो से। और उसके बाद जैसे कोई भी मेरा क्लाइंट, कोई भी मेरा एम्प्लॉय इंटरनेट के ऊपर कहीं भी वेबसाइट पे जा सकता है, अपना पर्सनल ईमेल आईडी यूज कर सकता है, और वो अपना अगर चाहे तो पेन ड्राइव लगा करके डेटा निकाल सकता है। और कोई मेरे पास फायर वॉल नहीं है, कोई मेरे पास रेस्ट्रिक्शन वाला नहीं है। एक बार मैंने फायर वॉल का प्लान सोचा था तो 2-3 लाख का, तो 1.5-2 लाख का फायर वॉल आता है। तो फिर क्योंकि हमारी कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया, तो मैं फिर उसको रुक गया मैं, राइट। ठीक तो है। अभी मेरे को जो कंपनी में जो रिक्वायरमेंट्स है, आई वांट टू यूज नंबर वन good professional email services, for example Gmail services. You ओके। are a reseller of Gmail services, right? राइट। अभी Gmail services मैं लूंगा। जो मेरी आपकी टीम से बात हुई थी, वो मिस्टर जो आपके अनुराग। जीमेल के एक्सपर्ट हैं, अनुराग। अनुराग जी, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो उनसे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था हमारे को कि क्या चार्जेस वगैरह हैं। और उसमें सिक्योरिटी भी है। और उसमें आप शायद 30 GB देते हो एक यूजर के लिए। हाँ और राइट। मगर कभी हमारे किसी किसी जैसे मैं एज ए यूजर हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट कई बार 100 GB भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास सारी मेल्स मेरे 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 उस पर आती हैं। मैं सबकी मेल्स की कॉपीज अपने पास मंगाता हूँ, ताकि मेरे पास सबका सबका इनपुट रहे, सबका स्टाफ का। ओके। मेल तो अच्छा, पढ़ लूँ पहले कम से पहले कम। आप मुझे अपनी सारी इश्यूज बताइए, बट इससे पहले कि आप शुरू हो, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। हाँ आपका शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, तो जी जी। यू आर बेसिकली फ्रेट एजेंट। नहीं सर, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक बहुत बड़ा नाम हो गया। हाँ वही वही मैंने कहा, मैं तो समझना चाह तो रहा था कि आप तो क्लियरिंग मेरी एजेंट हैं या फिर मतलब। मेरा नहीं, आई एम ओनली कस्टम क्लियरिंग एजेंट। अच्छा, यू आर कस्टम क्लियरिंग एजेंट, तो आपका दिल्ली एयरपोर्ट पे मतलब, और ये जो अपना तुगलक। दिल्ली एयरपोर्ट, हाँ आईसीडी हाँ और पचमढ़गंज में, एट हाँ दीज 3 प्लेसेस मेरा स्टाफ जाता है, और हम अपने हाँ क्लाइंट्स का जो भी इम्पोर्ट्स आता है हाँ वो क्लियरेंस करते हैं। एक्सपोर्ट में हम लोग बहुत कम है। तो हाँ। हमारा जो मेन चीज है वो ये है, प्लस जीएसटी के रिफंड्स कुछ क्लाइंट्स के लिए हम लोग करते हैं। तो हम्म। वो भी एक लिमिटेड सा है। तो दिस इज माय मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन। एंड तो बेसिकली आपके ग्राहक, कुछ ग्राहक बताइए मुझे, किस तरह के ग्राहक हैं आपके। मेरे ग्राहक है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया। एक्चुअली क्या है कि हमारी स्पेशलाइजेशन है, जो भी इंपोर्टर्स ड्यूटी बेनिफिट अवेल करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे होते हैं, राइट। राइट। तो जितनी भी यूनिट्स, कई कंपनियां जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, नॉर्मली ऑल एमएनसीज आर देयर, हम्म। राइट। फॉर एग्जांपल मेट लाइफ हो गया आपका, राइट, एनईसी हो गया राइट। आपका, एऑन हो गया। तो ये सारी कंपनियां जो हैं, आरबीएस हो गया। तो राइट। ये सब आईटी एक्सपोर्ट्स में है, और ये सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। तो इस तरह के क्लाइंट्स हैं मेरे, जो कि ड्यूटी बेनिफिट लेते हैं ज्यादा। और इसीलिए मेरा जो काम है वो एमएनसी क्लाइंट्स के साथ ज्यादा है। समझ गया मैं। और जी जी। इसके अंदर में, क्योंकि हमारे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो डेल्टा एक्सपोर्ट्स के नाम से हमारी कंपनी है। हाँ, मैंने मैंने सुना था आपकी वही हाँ कंपनी, हाँ।
वो एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट बहुत करती है। जी। SEZ भी था, मैं दादरी गया था खुद पर्सनली उसकी अप्रूवल लेने के लिए। C&M एग्जाम के नाम से पूरा हमारा EOU था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अच्छा, यूनिट। आपका ईओयू था? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तो आप पूरा वहाँ पे होगे, हाँ नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ, तो मैंने पूरा ये सारे काम कर रखे हैं। और ये पूरा C&F एजेंट, जैसे अमृत सीयर कार्गो है, अच्छा अच्छा। CMI लॉजिस्टिक्स है, तो सब लोगों से बहुत मेरी बातचीत होती थी, बट अब उस बात को काफी टाइम हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि जो अभी आपके पास में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या दिक्कतें चैलेंजेस आप में फेस कर रहे हो। तो आपने एक तो सिक्योरिटी को लेके बताया कि यू आर नॉट सो मच श्योर कि एग्जैक्टली डेटा किस तरह से हाँ है, जी राइट। जी जी जी। एंड आपके पास में मतलब क्रिटिकल डेटा रहता है कस्टमर्स का क्या? क्रिटिकल डेटा नहीं, मेरा अपना डेटा ही है सर। मेरी अपनी वो अपनी कोटेशंस हैं, मेरी हाँ। अकाउंटिंग है, टैली है, सबका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। कभी हम्म, कोई सिस्टम फेल हो जाए, क्रैश हो जाए, तो मेरे को रिट्रीव करने के लिए जो है, आई शुड नॉट बी रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि यार हार्ड डिस्क में निकाल दो, मेरे को डेटा निकाल दो। ठीक है। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, और ईमेल सर्विसेज होनी चाहिए, बैकअप बड़ा सॉलिड होना चाहिए, हाँ। बैकअप मेरा पोर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे ये मेन कंसर्न्स हैं, और जिसको मुझे सॉर्ट सॉर्ट आउट करना है। और फिर अगर हम लोग जीमेल सर्विसेज यूज करते हैं, तो जीमेल के लिए अगर मैं अपने क्लाइंट के साथ जीमेल के ऊपर जी सूट्स के ऊपर शेयर करता हूँ अपनी शीट्स वगैरह, अगर मेरा क्लाइंट एक्सेल यूज कर रहा है, तो उसको कहीं जी में जी फॉर्म्स को यूज करने में दिक्कत तो नहीं होगी इम्प्लीमेंट करने में। There's such stupid questions I have in my mind, नहीं नहीं, because ठीक है। I'm नहीं, not a text देखिए, heavy person. but लेकिन still I want to know the higher level of challenges that you're facing in your company. Okay, so ये तो आप एक specific tools की बात कर रहे हो, but on a as a management, what are your challenges? क्योंकि आपको दिखता है कि business को आपको direct करना है, तो जी जी। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या as a management क्या challenges आपको आ रहे हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? Since you have been in business for a long time, now what जी do you जी। think is stopping you? कि in terms of management, what are the challenges that you are facing? हम्म, मैनेजमेंट में कुछ आपको दिक्कत आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इन टर्म्स नहीं, ऑफ आप पूछो, आप पूछो। देखिए, जनरली स्पीकिंग मैनेजमेंट में एक तो मेजर दिक्कत आती है लोगों को अपना टाइम मैनेज करना, अपनी टीम का टाइम मैनेज करना, टाइम नहीं मिल पाता है। तो जी डे टू डे के काम में लोग लगे रहते हैं, और जी 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 फायर जी फाइटिंग बहुत ज़्यादा रहती है कि ये गलती होगी, वो जी। गलती हो गई, या आपने कुछ काम करना था आप भूल गए, टीम को फॉलो करना भूल गए। हाँ, तो एक जैसे नॉर्मल ईमेल्स ईमेल्स के ऊपर हम लोग रिमाइंडर चाहते हैं, रिमाइंडर लग जाए। आपने अपने वर्कशॉप में कहा था कि सो एंड सो वेबसाइट है, वहां जाओगे तो आप वो ईमेल का रिमाइंडर लगा सकते हो। तो हाँ। हमने जाके देखा, तो लेकिन वहां पर उस साइट पे हमें पूरा मैसेज भेजना पड़ता है उनको, विद अटैचमेंट, हम्म, तभी जाकर के उसमें लगता है। बट आई हम्म। डेंट वांट टू सेंड द मैसेजेस टू दैट वेबसाइट, बिकॉज दैट इज माय क्लाइंट्स डेटा आल्सो। बट सो लेकिन इसलिए देर आर बिल्ट इन फीचर्स इन जीमेल ऑल्सो। स्नूज का एक फीचर है, वो आपने शायद नहीं यूज किया है। तो जीमेल अच्छा। के अंदर भी बिल्ट इन फीचर है, यू हैवंट यूज दैट। हाँ इट्स जी हाँ जी हाँ जी, मे बी वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो या। मतलब इस टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज, क्या आप टीम की मीटिंग्स वगैरह लेते हो? एक सिस्टम बनाया हुआ है आपने कि? मैं टीम की मीटिंग लेता हूँ एवरी डे मॉर्निंग, वी ओके। हैव ए कॉन कॉल। पाठक साहब, कैन यू हियर मी? आई हैव ए कॉन कॉल बिकॉज़ वी आर आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। ओके। पाठक साहब, आर यू देयर? आई थिंक देयर इज सम चैलेंज एट योर एंड। कस्टम क्लियरेंस के लिए वी हैव टू माय एंड। हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। आई हैड लॉस्ट यू। आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम विद योर कनेक्शन। सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? तो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? इज इट ये चैलेंज पाठक साहब की साइड इज से है, इट आपकी साइड से है? नाउ बेटर? तो मुझे आ रही है आवाज। नहीं, तो पाठक साहब की साइड से चैलेंज है या मेरी तरफ से चैलेंज है ये? तो पाठक साहब की, अच्छा। उनकी स्क्रीन भी स्टॉप हो गई है। पाठक साहब, maybe what I can do is we can stop your video for a moment. आप या, बात, आई विल डू दैट। हाँ, मैंने आपका वीडियो स्टॉप कर दिया। maybe it might improve better so we couldn't listen to you. आप बोलिए। या, नाउ इज इट बेटर सर? हाँ हाँ, definitely, please. Okay, okay. So, so we are having our con calls every day,
And we have also started using your G Suite sheets for our status. You know, what is his status, what is that status. Earlier people were using individual sheets. Now it is a combined sheet. So after attending your program, we have started that. Okay. And besides that, actually speaking, since we are not into e-commerce, we are not into, so we don't need WhatsApp services, reminders on that, automated reminders. So all those things are not a part of our activity of business, right? So So what are the major challenges that you foresee कि अभी जो भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जिस तरह से ये लोग आगे ग्रो कर रहे हैं, तो अभी yeah, आपको क्या चीज रोक रही है ग्रो करने से? What are the areas in which areas are you facing some challenges related to finance, some related to operations, like workflow में दिक्कत आ रही है, कोई delays हो जाते हैं, आपको visibility नहीं है, या आपके पास में डैशबोर्ड्स नहीं है, तो किस तरह की दिक्कत आपको ज्यादा आ रही है अभी, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा आ रही है? HR रिलेटेड कोई challenges हैं? HR रिलेटेड तो मैंने आपकी वर्कशॉप भी अटेंड नहीं करी. एक्चुअली HR चैलेंजेस है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कंसल्टेंट्स हैं उनके पास, और उसके हिसाब से फिर हम लोग पेमेंट कर देते हैं. तो HR में क्योंकि ज्यादा स्टाफ भी नहीं है ना जी, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस उसमें हमारे को आते नहीं है. तो 20-25 लोगों का स्टाफ है, तो उनकी मंथली सैलरीज हैं, सेट प्रिंसिपल्स हैं, सेट डिडक्शंस हैं, सेट पीएफ्स हैं, लीव वगैरह सब कुछ सैंक्शन होती है. तो उस HR में ज्यादा इश्यूज है नहीं मेरे पास. ओके. मेरे पास ज्यादा इशू तो बस ये मैंने बताया आपको जो है. बाकी तो फॉलोअप्स वगैरह जो है, अगर हमारे को जी मेल में ईमेल रिमाइंडर्स के लिए वो मिल जाते हैं तो ठीक है. तो अदरवाइज वी आर कैरिंग ऑन, एंड बिकॉज आई हैव टू इन्वॉल्व माई सेल्फ, बिकॉज एज यू नो कस्टम क्लियरेंस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू. So it is, we have to provide services to clients. There should not be any delays. So my involvement becomes necessary every morning and every evening to ensure Right. that my team does not delay anywhere. And case somebody is delaying, I have to find out a solution. तो डिले किस तरह के होते हैं आपके यहाँ? किस वजह से डिले हो जाता है? Delay in the sense के हमें कस्टम्स के अंदर ऑफिसर नहीं आया तो आई हैव टू कीप अ ट्रैक विद माय टीम, राइट? कि भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू हैव टू टेल मी, सो दैट द सर्विसेज आर नॉट पैम्पर्ड. So although Okay. and then we have manager at the airport, a person who's manager at SEZ. So I talk to only my managers, and they further talk to the people down below. So that type of a hierarchy system I have maintained. देखिए, जो मुझे फिर आपकी बातों से समझ में आ रहा है जी. कि अभी बेसिकली यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. आई हैव स्विच्ड ऑफ माय वीडियो बिकॉज़ आपकी कुछ ब्रेक कर रही थी. आई होप यू कैन सी मी नाउ. Yeah. So basically, I feel that currently you are living using technology more like a a small tool कि ठीक है, Yes. कैलकुलेट कर लिया, ये कर लिया, और खुद अभी आप टेक्नोलॉजी से कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ दूर हैं, राइट? ठीक है, तो आपको I can't hear you. इज इट बेटर नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, much better, much आई better. थिंक प्रॉब्ली वीडियो ऑन करने से आपकी तरफ बैंडविड्थ थोड़ी Yeah. Yeah. तो मेरा तो देखिए ये कहना है कि आपको देखिए टेक्नोलॉजी तो पाठक साहब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के बगैर ये सारे चैलेंजेस चाहे किसी भी लेवल पे हैं सॉल्व नहीं होंगे. Yes. तो ईमेल की भी जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इम्प्लीमेंटिंग जी सूट कंप्लीटली फर्स्ट. ओके, जी. दैट जी. इज द वेरी फर्स्ट लेवल फॉर यू. ओके, जी. और जी. उसके अंदर मेरी टीम आपको हेल्प कर सकती है. लेकिन जी. इसका ना एक चीज ये आ जाती है पाठक साहब की, दो आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक सर्टन एज है, ठीक है, जी. बट जी. होता क्या है कि देखिए बिजनेस में मैंने ऐसे भी लोगों को ट्रेन किया है जिन्होंने कंप्यूटर भी कभी ऑन नहीं किया. आई एम श्योर ओके. आप उनसे तो बहुत बेटर होंगे, हाँ जी, उनसे बेटर हूँ सर मैं. ठीक है ना? तो ऐसे भी लोग आके कई बार सामने बैठे हैं जो कि ये ढूंढ रहे थे कि पावर का बटन किधर है. जी. है, तो लाइक यू आर नॉट अमंग्स दी द पीपल हु डोंट नो एनीथिंग, राइट? एब्सोल्युटली. और बिजनेस में मैंने ये देखा है कि देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मुझे भी समझ में नहीं आती. मेरे लड़के जाके करोड़ों रुपए की इक्विपमेंट इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है,
लेकिन जब मैं बेचने जाता हूँ या मैं कस्टमर से बात करता हूँ तो मुझे कौन सा उसको प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए? आर यू गेटिंग मी? जी 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 मुझे तो जी सिर्फ जी ये पता होना चाहिए कि ये करती क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। एब्सोल्युटली अगर मैं उतना भी नहीं जानूंगा ना पाठक साहब, तो मेरे लड़के भी जी मेरे को उल्लू बनाएंगे और फिर मैं अगर मैं कस्टमर से मिलके आता हूँ तो आई एम नॉट एबल टू रियली टेक एडवांटेज ऑफ दोस टेक्नोलॉजीज। आर यू जी गेटिंग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सो आपको ना थोड़ा सा एक गलती आपने ये करी कि यू डिड नॉट अटेंड द टेक एसेंशियल योरसेल्फ। जी 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 यू शुड आई हैव थिंक यू आर राइट you should have attended it. Okay, and the best idea would have been कि you should have one person with you. ओके देखिए, I feel that even a one assistant, you know, with having basic knowledge of Excel will do wonders for you. या कि एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एज अ बिजनेस ओनर माई सेल्फ कि देखिए ओनर का डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक या है, काम या करने के लिए टीम आ जाती है, हर एक चीज के लिए आपके पास भी तो लड़के हैं ना, अकाउंट्स या मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट है। या तो व्हाई डोंट यू गेट वन पर्सन और हु इज ऑलरेडी देयर इन योर कंपनी टू असिस्ट यू, कि जहाँ पे भी आप अटकते हैं तो लेट हिम टेक ओवर। ठीक है, राइट बट ये राइट चीजों का समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट बेनिफिट इज। जैसे आप कह रहे हो कि मेरी आप ईमेल भर जाएगी, यस आपने बोला मेरी ईमेल भर जाएगी, बट रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। डू यू नो जी दैट गूगल प्रोवाइड्स अनलिमिटेड स्टोरेज फॉर इट्स ओन डॉक्यूमेंट्स। ओके आप कोई भी एक्सेल डॉक्यूमेंट लीजिए 20 MB का, जी वो गूगल ड्राइव में डालिए वो 0 MB बन जाता है। आपको शायद ये बात अच्छा पता, आपको शायद ये बात नहीं पता। नहीं पता सर नहीं पता समझे आप? और उसके जी बाद में जब हम ईमेल भी करते हैं तो इफ यू जी अटैच द फाइल इन द करेक्ट वे इट टेक्स 0 KB, डजंट मैटर इवन इफ द फाइल इज 10 TB। अच्छा बट इट शुड बी करेक्ट वे करेक्ट इन द सेंस कि इसको ड्राइव में डालना होता है। ठीक है, ओके उससे इसको ओके शेयर करना होता है। तो आप लोग क्या देखिए, जो मुझे पता है फ्रेट्स वगैरह के अंदर की कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी क्रिटिकल। यस एब्सोल्युटली ठीक है ना, आपको किससे क्या कम्युनिकेट करना है, क्या रिकॉर्ड गया यस था, उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना, टैग करना, ये सब आना चाहिए, राइट? यस 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 फ्यूचर यस में कल को 6 महीने बाद वो बंदा दोबारा ऑर्डर देता है तो डेटा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी तो देखिए आपके लेवल पे मैं बहुत कुछ तो नहीं रिकमेंड करूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो जी सूट की ट्रेनिंग है वो आप खुद अटेंड करें। हाँ वो तो मैं खुद करूंगा सर मैंने डिसाइड किया हुआ है और आप साथ में ना एक लड़का रखिए अपने साथ में जो कि आपको हेल्प कर सके और उसको आप डायरेक्ट करके ना काम करा सकें, क्योंकि देखिए आपके ठीक यहाँ है टीम टीम आपके यहाँ छोटी है, ज्यादा बड़ी टीम जी नहीं है। जी सर तो आप अगर एक लड़का रख लेते हैं अपने साथ में जिसको कि एक्सेल आती है ठीक से, हाँ जी सर हाँ जी सर है कोई आपके पास ऑलरेडी, हाँ जी है सर तो वो लड़के को साथ में ट्रेन कराइए। ओके और उसके बाद में उसको आप डायरेक्शन दीजिए कि तुम्हें ये करना है। राइट सर ठीक है ना, जी राइट सूट सर वगैरह का सेटअप मेरी टीम करा देगी, जो ईमेल के अंदर तो यू डोंट हैव टू लुक फार। ठीक है, ओके और आज की डेट में आई थिंक टिल अक्टूबर और टिल नवंबर गूगल इज गिवन अ वेरी गुड प्राइसिंग ऑन जी सूट। नॉर्मली दे आर चार्जिंग समथिंग लाइक 2500 रुपीज। ओके ठीक है, ओके तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, अभी तो 1500 रुपये ले रहे हैं वो सिर्फ। पर यूजर हाँ, पर यूजर पर ईयर, तो उसका एडवांटेज, पर ईयर ओके हाँ तो उसका एडवांटेज लीजिए। ठीक ओके है ना, सर ये राइट मौका सर तो राइट दोबारा मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, जी ठीक है जी चार्जेस ठीक है चार्जेस बढ़ जाएंगे। आप एक बार अनुराग से पूछ भी लीजिएगा। जी मेरे को डाउट है ऑल्दो, बट अगर इनकेस कहीं वो प्राइस लॉक करा पाए, सिद्धार्थ करा सकते हैं प्राइस लॉक 3 साल के लिए इस प्राइस में? सर बात करनी पड़ेगी सर गूगल से। हाँ, और मेरे बताऊं क्या, अब जैसे अभी हमारा जी सूट का वर्कशॉप अभी होना है कोई, वो अभी मेरी तो सिद्धार्थ जी से बात चल रही है लेकिन सिद्धार्थ जी इज नॉट वेरी श्योर ऑफ द डेट नहीं, नो नवंबर में 3 नवंबर को तो को है, वो तो आपको बताया था मैंने पाठक थर्ड सर। 3 नवंबर में है पाठक साहब। 3 नवंबर में वो बहुत हाँ, ओके 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 लेकिन एनीवेज हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप उस वर्कशॉप को अगर आप लेते हो तो हम उसका ऑनलाइन वर्जन आपको इमीडिएटली दे देंगे। तो जो आपका लड़का है जी एटलीस्ट वो उसको स्टडी कर सकता है और कुछ बेसिक चीजें इंप्लीमेंट करनी शुरू कर सकता है। बाकी तो फिर जब वो होगा लाइव आप तब वही ट्रेंड कर लेना, मतलब एक्चुअल में वो लाइव की ही रिकॉर्डिंग भी है उसके अंदर। अच्छा ओके 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 तो इट इज योर चॉइस, मतलब आप दोनों चीजें कर सकते हैं हम, कि तो अगर आप मेरे आपको, को नहीं तो आप मेरे को उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग दे दीजिए तो मेरे लिए तो एज गुड एज वर्कशॉप ही है सर हाँ तो वो सिद्धार्थ आपको बता देगा। ठीक है ना, ठीक है सर ठीक तो है आप सर वो कर लीजिए। और बल्कि उसमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप उसके अंदर 1-1 घंटा देख सकते हो, 2-2 घंटा देख सकते हो, और जी अपना जी लड़का साथ बिल्कुल में बिठा लीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल सर तो दैट वुड बी आई थिंक अ गुड स्टार्ट फॉर यू। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट सर आई वुड आल्सो प्रेफर दैट जो आपकी ऑनलाइन है क्योंकि मेरा
मेरे सवाल तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लर्निंग स्टेज के ऊपर हूँ। हाँ तो मुझे इंटरेक्टिव में तो ज्यादा आना ही नहीं है अभी, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी इसलिए क्या अभी। है कि देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जी तो डोंट कंसिडर कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि द क्वेश्चन इज दैट कि आज हम मशीन खरीद के लाते हैं, कौन सा हमें उसे चलाना होता है। जी 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 मेरी जी बात जी समझ रहे हैं? बट जी। बेसिक प्रोडक्टिविटी के टूल्स जो मैंने टेक एसेंशियल में भी सिखाए थे वो आपको ओके जानने जरूरी हैं। ओके क्योंकि देखिए ओके। ईमेल तो आप यूज कर ही रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। कैलेंडर कैलेंडर आप यूज कर ही रहे हो, फोन आप यूज कर ही रहे हो, तो वो चीजें जी। तो देखिए आपकी लाइफ को आसान बना रही हैं। ओके ओके, ठीक So है जी, ठीक है anyways, जी। you have paid for these tools. You already जी have them. So you जी। must take advantage of these. ओके, हाँ मुझे पता ही नहीं एक्चुअली, यू आर राइट। अगर मैंने खुद से अटेंड किया होता तो मुझे टूल वूल के बारे में आइडिया हो गया होता मेरे को। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि स्टाफ देखिए कितना भी मेहनती हो, जब तक ओनर का डायरेक्शन नहीं है ना, तो यस उसको यस यस यस, एब्सोल्युटली देखिए एब्सोल्युटली। और वो, फिर हाँ स्टाफ में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी आ जाती है यार, ये एडिशनल काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा भाई थोड़ा देखो, बहुत पीपल ट्राई टू अवॉइड ऑल्सो। देखो बने रहो पगला, काम करेगा अगला, सीधा सा फंडा है जी है ना? जी जी। एब्सोल्युटली है एब्सोल्युटली, ना? आई थिंक आई शुड हैव अटेंडेड दैट, या हाँ, तो यू शुड हैव अटेंडेड दैट, बट स्टिल उसका ऑनलाइन एक्सेस हम आपको दे सकते हैं, टेक एसेंशियल का वो हमने ऑलरेडी आपके लिए तो दे ही रखा है, तो आप उसको क्यों नहीं दोबारा देख लेते हैं? अच्छा, आपने दे रखे हमारे को ऑनलाइन उसका है? बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्यों सिद्धार्थ? यस सर, है ना? फीचर। तो आई एम सरप्राइज कि आपको पता नहीं है। देखिए आपके मैनेजर ने आपको बताया नहीं ये बात, और ओके उसका ओके। पूरा तो रिकॉर्डिंग और सारा कुछ है, तो स्टिल यू नो लाइक सिद्धार्थ जी, मैं आपसे बात कर लूंगा, और ठीक है मैं ये कल सैटरडे संडे को मैं उसको देखूंगा सर, ठीक है? ठीक है सर। आप प्लीज देखिए, क्योंकि मुझे वही जी लगता है कि आपने मैंने तो देखिए, मेरा तो मिशन है ये कि हाउ जी, टू बिल्कुल बिल्कुल सर। निकल। अच्छा, क्योंकि अभी ना आप बहुत बेसिक लेवल पर हैं, और मतलब बिजनेस को आगे जो भी लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं, यही बिजनेस को बहुत स्मूथली चलाना चाहते हैं कि भी मैं सारे टाइम मेरे हेडेक ना रहे, जी 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 कि भी मैंने हफ्ते में कुछ सेलेक्टेड हर रोज 2 घंटे दे दिए तो सफिशिएंट है, ठीक है जी ना? वो जी। लेवल आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लोगे, और ये है बहुत सिंपल। ओके ओके ओके, ठीक है आप मेरी सर। बात समझ रहे हैं? अभी देखिए कई लोग होते हैं, वो कहते हैं हम तो कई करोड़ों की टर्नओवर करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ हाँ तो उनको चाहिए। बट अगर आप ये बिजनेस को भी एक होता है ना कि भी आदमी स्ट्रगल कर करके कर रहा है, ठीक है ना, हाँ तो हाँ जी हार्ड जी, वर्क इंस्टेड ऑफ स्मार्ट वर्क, तो वही है एब्सोल्युटली। कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पुली एंड अ चेन, आपको कि मैं तो अपने कंधे पे रख के लेके जाऊंगा, इट डजंट मेक सेंस। जी जी, सही बात है जी। है ना? ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट। तो नाइस स्पीकिंग टू यू पाठक साहब। तो लेट अस डू वन थिंग कि जी वी विल ट्राई एंड गेट योर जी सूट इन प्लेस, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। देन सिद्धार्थ विल एनेबल यू। आपकी किससे बात हो रही है? रमा से, सिद्धार्थ से, किससे बात हो रही है? मेरी जी सिद्धार्थ जी से बात होती है सर। जी सूट में मेरी एक दिक्कत थी, जो अनुराग जी के पास जवाब था नहीं। क्या? मेरा ही सवाल था उनको कि मैं अगर जी सूट में चेंज करता हूँ, हम्म। तो मेरे जो इतने सारे मेल्स मेरे माइग्रेशन कैसे होंगे? माइग्रेशन का जो है, फिर सिद्धार्थ जी को थोड़ा सा देखिए अनुराग जी के पास बहुत रेडी आंसर था नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अनुराग तो इतने लाखों लोगों की माइग्रेशन करा चुका है, बट आपका स्पेसिफिक केस देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा आपकी मेल कितनी है और है कहाँ पे। क्योंकि मेरी मेल ना, अभी हमने ईएम क्लाइंट यूज किया था हमने सॉफ्टवेयर। तो हम्म। अनुराग ने कहा था कि अगर आप आउटलुक के ऊपर ला सकते हो रीडिफ से बात करके, हम्म। तब तो मैं माइग्रेशन इजी है। हम्म। अगर आपका आउटलुक पे नहीं आया रीडिफ के थ्रू, तो माइग्रेशन इज ए कंसर्न, और हम नॉर्मली माइग्रेशन हम लोग करते नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे कि माइग्रेशन का क्या होता है ना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। जी तो जी, ही वाज सेइंग दैट। यू अंडरस्टैंड दैट कि टाइम के ही पैसे लगते हैं। जी अगर जी जी अब एक जी आदमी ने सेटअप कर दिया, तो उसके भाई 1 घंटे का अलग चार्ज है, और अगर उसको मेल डाउनलोड करने में बहुत टाइम लग रहा है तो अलग चार्ज है, बट ही विल फाइंड अ वे फॉर यू, नॉट टू वरी, मैं पता करा जी। दूँ। आप सर पता कर रहा था कि क्योंकि हमने उसने कहा था कि आप रीडिफ मेल से पूछ लो कि क्या वो आउटलुक पे कन्वर्ट कर देंगे। हाँ रीडिफ से हमारी हमारी बात हो नहीं पा रही है, हमको रिमाइंडर भेज रहे हैं, तो अभी उनसे हमारी कॉल होनी है, तो इशू आई एम नहीं है। विगरसली। आप एक काम करना, टेस्ट बेसिस पे अपना एक अकाउंट दे देना, कोई अनइम्पोर्टेंट सा अकाउंट जो है ना, अच्छा। आपके 50 लोग हैं उनमें से किसी एक बंदे का दे देना, उस पर ट्राई करके देख लेगा वो, क्यों? हाँ, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है ना? आप कोई एक अकाउंट दे देना जिससे कि अपलोड डाउनलोड करके वो टेस्ट करा लेगा। ओके ओके, ठीक है सिंपल एज ठीक है। दैट, है ना? ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है। और बाकी ये सिक्योरिटी वगैरह जो है, जब संजीव जी, ये कोई बंदा
अपनी पर्सनल मेल ना कर सके मेरे सिस्टम से, ये सब जी सूट के अंदर पॉसिबल है? हाँ, ये सब कुछ जी सूट में है, इसकी तो टेंशन ही मत लो आप। अच्छा अच्छा, बल्कि तो आप जो लोगों के मेल मंगा रहे हो ना अपने पास, दैट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। आप हर एक का मेल खोल के देख पाओगे 1 सेकंड में, ओके ओके, ये भी जी जी सूट में है ना? एज इट इज। सिर्फ आपको बंदे के नाम पे क्लिक करना है, अपने आप ही उसका मेल खुल जाएगा, क्या सेंड क्या अच्छा रिसीव। अच्छा, ओके ओके। तो सर ये बात बताएं, हम्म इसमें आपकी टीम हमारे कुछ, सपोज आई यूज योर सर्विसेज, तो हम्म। आपकी टीम उसमें हमें क्या क्या सपोर्ट करती है? ये जो चीज़ है ना, ये आपको actual पूरा अनुराग बता देगा, तो सिद्धार्थ ओके, आपको ब्रीफ कर देगा, क्योंकि एक्चुअली हमारे ठीक है, अगले गेस्ट आ गए हैं, तो मैं ओके इन्वॉल्व। ओके ओके, डन 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 सर, ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू थैंक सो यू मच सो I'll मच। संजीव connect with you, sir. जी। ठीक है ठीक है संजीव जी, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू सर। सेम है पाठक साहब। या थैंक यू सर, थैंक यू। सो वेलकम राजकुमार जी, आप अपना कैमरा अनम्यूट कर सकते हो इफ यू लाइक। Sure, sir. मैंने कहा बेटर टू लेट मी सी यू, Okay. क्योंकि वेबिनार में तो कई बार कनेक्ट हो नहीं पाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yeah. गुड टू सी यू। Nice to see you, sir. Yeah. सेम हियर जी, सेम हियर। Great. राजकुमार जी बताएं मुझे अपना, थोड़ा अपने बारे में बताएं। Yeah, sir. We are into manpower outsourcing business into HR. ओके और राहुल सर का 2018 बैच में, और हमारी ग्रैंड मास्टर के सारे लोग भी आपके कोर्सेज कर चुके हैं। सो मैं भी अच्छा। बड़ा एक्साइटेड था। तो अब मेरा आपके रेगुलर, जब से कोविड है तब से मैं आपके प्रोग्राम देखता आ रहा हूँ। वेरी नाइस। और इसमें मैं और जानना चाह रहा हूँ ऑटो पायलट के ऊपर हम किस तरीके से अपनी कंपनी को ले जा सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास मान के चलें तो 7 to 8,000 एम्प्लॉइज हैं जो हमारे लिए डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। जिस तरीके से आप भी सैमसंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम भी डे वन से सैमसंग के साथ जुड़े हैं। उनका जितना भी मैन पावर का रिक्वायरमेंट रहता है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। अभी कैजुअल मैन पावर है, पहले इनका होम अप्लायंसेस बिजनेस था, उसके बाद मोबाइल बिजनेस था। तो ये समझिए कि मैं इनके साथ 20 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। इसी तरीके से हम लोग सोनी में भी, जब सोनी आया था इंडिया में तब से 21-22 साल हो गए हैं। उनके 500 एम्प्लॉइज हैं जो हमारे पास आउटसोर्स किए हैं। उनका कॉल सेंटर है, उनके जितने भी अकाउंट्स में या रिसेप्शन पर या इस टाइप का जो रिकॉर्ड सेल्स के फोर्स लोग होते हैं, तो ये सारे हम आउटसोर्स के ऊपर कर रहे हैं। डिक्सन हो गया, हेनरिक हो गया, फ्यू मोर मोबाइल, ओप्पो, वीवो, या पहले था हुआवे, ली इको। तो ऑल द मोबाइल्स वी हैव टच्ड। तो राजकुमार जी, वीवो मोबाइल तो इनफैक्ट जो उनकी ग्रेटर नोएडा की जो फैक्ट्री बनी है, सर, उसका पूरा आईटी का काम मेरे पास ही है। ये हमारे आई नो। ये हाँ सेक्टर हाँ हाँ। सेक्टर 44 में ही हमारे किराएदार थे डेल्टा टावर में। ओके 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 ओके, तो राइट डेल्टा राइट टावर राइट। की जो बिल्डिंग है वो और मैं हमारी। उस फैक्ट्री में आया भी था जी जी, सेक्टर 44 में मैं आया था इंटरव्यू के हाँ। लिए। तो उस टाइम पर बात नहीं बनी थी, फिर मैं रह गया। तो हम इनके सर करीब करीब 3000 जो इनके फोन सेल करते हैं, सेल्स बॉय हम कहते हैं, ओके। शॉप डेमोन्स्ट्रेटर, तो वो हम आउटसोर्स उन्होंने किया हुआ है। तो उनकी पूरी सेल्स हम लोग देखते हैं। वेरी नाइस। तो मतलब कि बेसिकली सेल्स टीम सारी आपने आउट इनको ले रखी है, मतलब कि इन्होंने हाँ जी डिप्लॉय जी, करते हैं, ये अपने लड़के राइट deploy करते हैं दुकानों पे। राइट सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से सैमसंग को ले लीजिए, उनके भी खैर मैंने उनके साथ 6 साल काम किया। अभी तो आइकिया के पास है वो वाला काम। तो पहले करीब करीब 4000 नंबर मेरे पास था इनका। मेरे पास नॉर्थ था और साउथ था पूरा, और ईस्ट और वेस्ट आइकिया के पास था। इसी तरीके से हितैची एयर कंडीशनर, इनके पास भी 550 लोग हैं आउटसोर्स, जो शॉप्स के ऊपर पैन इंडिया, वो भी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब आप स्पेशलाइज कर रहे हो सेल्स के अंदर, कि सेल्समैन प्रोवाइड करने में, am I right? राइट सर, राइट राइट। अच्छा, दैट्स क्वाइट यूनिक, बिकॉज वी हैव अनदर कंपनी, एक काफी बड़ी कंपनी है, इंप्रेशन नाम है, विक्रम चड्डा। ओके, तो उनके पास हैं अराउंड 20,000 एम्प्लॉइज। वाओ तो वाओ। उनको हमने ट्रेन किया था, मेरी टेक मास्टरी में आए थे वो अपनी पूरी टीम को लेकर, एंड आई थिंक वो जो करते हैं काम, वो भी आपके जैसा ही कुछ काम है, बट दे आर डूइंग मोर हाउसकीपिंग वर्क। हाँ, ओके 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 ओके, गॉट इट तो आप गॉट कहीं इट। भी चले जाओ बड़े होटल्स वगैरह में, तो आपको ना वो हाँ दिखाई देगा लिखा हुआ इंप्रेशंस।
या होटल्स ले लीजिए या हॉस्पिटल्स भी बड़े-बड़े ले लीजिए, हाँ, क्लब्स उनके वगैरह अंदर में भी। भी क्लब्स वगैरह में हाँ, भी इनके वर्कर दिखाई हाँ, देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जी, कुछ सिमिलर काम हुआ फिर आपका इनसे इनसे मिलता हाँ सर, जुलता? सिमिलर काम है। जी, तो आपने बीसीआई पूरा किया हुआ है, सर। तो अब आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? मुझे थोड़ा-सा बताइए तो कि मैं उसके हिसाब से फिर आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। आपको क्या-क्या राइट। चैलेंजेस अभी आ रहे हैं? क्या बीसीआई एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया है आपने? सर बीसीए इम्प्लीमेंट किया है। ऑटो पायलट हम मान के चलते हैं कि 70% है, लेकिन जैसे राहुल सर कहते हैं कि 1 डे इन अ वीक काम करें, बट मेरे को अपनी पूरी टीम को पुश करना पड़ता है काम आगे करवाने के लिए। हुँ, से जैसे हम लोगों ने हायरिंग कर ली, अब हायरिंग के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन आना है, हुँ, आधार कार्ड आना है, पैन कार्ड आना है, हुँ, फोटोग्राफ आनी है, और उसके बाद यूएन नंबर देना है, पीएफ ईएसआई नंबर देने हैं। तो हुँ, इनको फिर हमारे को बोलना पड़ता है कि यार इस महीने में हमने 600 लोग रिक्रूट कर दिए हैं, कितनों का ऑफर लेटर चले गए, कितनों को अपॉइंटमेंट लेटर चले गए, कितनों के यूएन नंबर ले लिए, कितनों के ईएसआई नंबर ले लिए। वो डेली ट्रैकर एक बनाना पड़ता है और उसको अपडेट करना पड़ता है। तो वो पुशिंग वाला बहुत ज्यादा अभी इन्वॉल्व है। लोग समझ गए हैं कि आरके सर ने राहुल जैन किया हुआ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करवाना कर रहे हैं। गूगल ड्राइव के ऊपर भी काम मैक्सिमम हमारा हो रहा है। कोविड सर जैसे शुरू होने वाला था, तो मैंने 17 को ही अपने टेली वाले से बात की कि यार हमारा सोनी जो है 21 से बंद हो रहा है, तो मेरे को, क्योंकि हमारा मेन मिनी बैंक है, हमको सैलरी जब 7,000 को देंगे तभी हमारे सर्विस चार्जेस आएंगे। तो मैंने क्लाउड में ले लिया अपना टेली, तो हम बहुत कंफर्टेबल है, सब लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। अकाउंट्स मेरा बहुत स्ट्रांग चल रहा है। हमने सर का भी किया था, जोगिंदर जी का, हमारे जगमोहन जो है, का जगमोहन का। जी, जगमोहन जी का। तो तो जगमोहन का एफसी 21 लगाया आपने? फाइनेंशियल कंप्लायंस 21। हाँ जी, बिल्कुल लगाया हुआ है। हाँ जी। तो एफसी तो 21 वो एफसी आपका 21 क्रेडिट। हमारी राइट। टेक्नोलॉजी है एफसी हाँ, 21। हाँ, राइट। तो जी। जगमोहन एक्चुअली हैज़ डन माय कोर्स नाउ 3 टाइम्स। ओह माय गॉड! हाँ, ओके, जगमोहन हैज़ डन ओके। माय कोर्स 3 टाइम्स, राकेश शर्मा जी हैज़ डन इट 2 टाइम्स। अच्छा, ओके, जितने भी ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो तो ब्लाइंडली मैं कह सकता हूँ कि छोटी से बड़ी कंपनी हो तो क्योंकि सिस्टम्स और प्रोसेसेस की जब बात आ जाती है तो दे हैव टू कम टू मी। राइट, आई नो। तो तो जैसे इसीलिए मैं आपने आपके दूर-दूर से देखता रहता हूँ हाँ, प्रोग्राम। हाँ, मैंने हाँ, कोविड में आपके 8 या 10 प्रोग्राम, सेमिनार अटेंड किए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे मेरे, ओके। तो मेरा बड़ा फैसिनेटेड रहता है यार, सीखना है। बट मैं मेनली कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं जानता। हाँ, मेरे पास टीम जो है, वो जैसे राहुल सर ने बोला था डीएमई, ईए हुँ। और बाकी सब लगा के रखे हैं, वो चीजें चल रही हैं। बट उनको ऊपर से मॉनिटर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है मेरे पास कि मैं उसको, क्योंकि मैंने आपके लास्ट ईयर भी जो देखा कुछ दिन पहले जब हुआ था सेमिनार, तो उसके अंदर भी सारे आपने व्हाट्सएप से लेके और ऑटो मेलर और सेल्स एंड ऑल दैट काफी फैसिनेटिंग चीजें सिखाई हैं आपने। नहीं तो वो हैट्स चीजें, हैट्स ऑफ टू यू आपके पास इतनी ज़्यादा पब्लिक है तो और आप मैनेज कर ही रहे हो और आप कह और रहे इवन हो तो कि मेरी ये प्रीति है, वो हाँ, आपको मैं उस टाइम अमेरिका में था, तब वो आई थी कोर्स करने, फिर आपने बोला था आप सर के साथ दोबारा आ जाइएगा, मैं फिर और समझा दूंगा। तो मैंने अपनी ये को भी आपके यहाँ पर ट्रेनिंग करवाया हुआ है एक बार। ये ट्रेनिंग में आई हुई है क्या प्रीति? जी, जी, प्रीति आई हुई है, यस। अच्छा, एक सेकंड ठहरिए, मैं चेक करता हाँ, हूँ। आपने प्रीति, कंपनी का नाम बताइए? प्रीति भारद्वाज। हाँ, कंपनी का नाम बताइए? सुपरवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सुपर सुपरवेल, वेल इट्स वी या डब्ल्यू? SUPERWELL, या। हाँ, प्रीति भारद्वाज शी केम जी, ऑन हाँ। जुलाई 2019। लास्ट ईयर, यस, हाँ, यस। प्रीति तो भारद्वाज। बहुत ही ज्यादा 2-3 दिन तक तो बहुत चार्ज थी। हाँ, सर कहाँ आपने भेज दिया, कितना मजा आया। अब मैं हाँ, आपका सारा टाइमिंग ये वो सब करूंगी। सो हाँ। वो धीरे धीरे वापस, आई नो कि सर इसको 3 मंथली 6 मंथली कैप्सूल लेते रहना चाहिए, नहीं ऐसा क्योंकि नहीं है। पहले आप मुझे बताइए कि जैसे आपने मुझे एचआर का बताया तो यू हैव टोल्ड मी वन बिग चैलेंज कि एचआर के जो प्रोसेसेस हैं आपको पुश करना पड़ता है टाइमली हो जाए। एम आई राइट? राइट। और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको राजकुमार जी? मे बी आई कैन हेल्प यू ओके, ओके। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई इश्यूज या चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ फॉलो अप, फायर फाइटिंग, डेफिनेटली टाइम? फॉलो अप बार बार करना पड़ता है। फायर फाइटिंग भी रहता है, इन द सेंस कि कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट से, आज इन्होंने बोला कि हमारे को वेस्ट में
हम्म, 300 लोगों की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने टाइम दे दिया कि आपके पास 3 वीक्स का टाइम है। हम्म, तो उस टाइम हमारे पास अपना रिकॉर्ड में होता है कि 10,000 लोग हैं, अब इनको कॉलिंग करना है या इनको मैसेजेस भेजना है या 5,000 लोगों को पकड़ के और उसमें से शॉर्टलिस्ट करना है कितने लोगों को हम कर सकें कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आए। तो वो चैलेंज भी रहता है कि कॉलिंग में लग जाते हैं लोग, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सबके पास मैसेज चले जाए कि यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी आई है। तो जो जो पुराने लोग हमको काम करके छोड़ चुके हैं या आगे मार्केट के अंदर हैं, तो उनके पास मैसेज चले जाए कि भाई यहाँ पे नया जॉब मिल सकती है, तो आप आए, अपना रिज्यूमे दें या बाकी काम करें। तो एक चैलेंज ये भी रह जाता है हाँ, तो रिक्रूटमेंट मतलब का। आपको टच में रहना इन सारे पूरा एक एक मतलब कि एक पूरा आप ट्राइब बना सकते हो अपना, जिसके टच में रह सकते हो और इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सको। इवन जो एब्सोल्युटली, आपके पास इतनी लंबी चौड़ी वर्कफोर्स है, इनको ट्रेनिंग करने में भी दिक्कत आती होगी आपको कि ये कैसे एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एसओपीज फॉलो कराएं और हाँ, ये एग्जैक्टली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई थिंक फील्ड में एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं ये नहीं पता लगता होगा। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है? फाइनेंस को सर जगमोहन जी ने कंट्रोल कर लिया है। अब हम्म, काफी ज्यादा हम स्ट्रांग है। जैसे सर ने बताया हुआ कि आप 4 तरीके से अपने फाइनेंस को प्रोजेक्शन में ला सकते हैं कि भाई अगर मेरी सेल्स 5% बढ़ती है तो मैं कितना अचीव कर सकता हूँ। हम्म, और दूसरे पहले हमारा ये होता था करीब 30 डेज तक का बैंक रिकंसिलेशन नहीं होता था, अब एवरी डे रिकंसिलेशन शाम को कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग है क्योंकि माय डॉटर शी इज आल्सो सीपी एंड सीएफए, तो उन्होंने इसको अच्छी तरह कंट्रोल कर दिया है फाइनेंस को। बट ओके, ऑपरेशन पार्ट है जो, वो हमारा डिपेंडेंट है। या फिर ये भी कह लूं कि अगर एक एचआर का बच्चा काम कर रहा है तो उसको सिर्फ नॉलेज है, बाकी लोगों को नॉलेज नहीं है कि कितनों को अब आगे जाके ऑफर लेटर देने हैं, या 1 या 2 दिन वो छुट्टी पे चला गया तो पीछे का काम जब वो आएगा तभी शुरू होगा दोबारा। ओके, वो चीज रह जाता है कि ये नहीं हो पा रहा। अच्छा। सो मतलब कि ये चैलेंज है। ऑपरेशनली और फिर आपके जैसे कस्टमर इतने सारे हैं तो उनका कुछ कंप्लेंट हैंडलिंग वगैरह का या एस्केलेशन का भी कुछ सर सिस्टम बनाया हुआ कंप्लेंट का भी हमने कुछ नहीं रखा हुआ। यस, वो 1-to-1 कंप्लेंट आती है, बस उसको उसी टाइम कहीं मॉनिटर नहीं करते हम लोग। बस ठीक है, कंप्लेंट आई, उसका सॉल्यूशन दिया और क्लोज कर दिया। तो बट कहीं पे ये मॉनिटरिंग नहीं हो रही कि किस फील्ड में ज्यादा कंप्लेंट आ रही है। से हम्म, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कई बार आता है कि फोन आता है, सर मेरी सैलरी के अंदर ये कम रह गया, इतने डेज कम हो गई, या मेरा ओटी नहीं आया। तो वो 1-to-1 अकाउंट से बात करता है, उसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन वो मॉनिटरिंग कहीं नहीं हो पा रही। बट लेकिन कस्टमर के पास जैसे 500 600 700 800 लड़के आप लगा रहे हो, तो सर कस्टमर को आपने कुछ दे नहीं रखा कि वो लॉग कर सके, देख सके उसका स्टेटस क्या है या उन्हें कोई नहीं सर, प्रॉब्लम वो है? नहीं दिया हुआ, राइट, नहीं दिया हुआ। ओके, 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 दैट इज वो वन चीज एरिया, नहीं थी। दैट इज वन एरिया वेयर यू शुड लुक या इन। दैट इज अ वेरी, या हाँ, आई हैव हर्ड। और मिस्टर ललवानी आपके साथ किए हुए, केडी ने भी किया हुआ कोर्स आपका, 3-4 ललवानी कौन लोग हैं, से पंकज। कौन से हाँ ललवानी? हाँ, हेमंत लालवानी, हेमंत हेमंत, नंदिता, हेमंत नंदिता। ओके, ओके। हाँ, वो हमारे बैच के ही हैं। केडी, वो भी हमारे, पंकज, वो भी इन हमारे सब बैच के हैं। इन सब के अप्रेजल्स वगैरह, जो इतने सारी स्टाफ है इनकी अप्रेजल्स वगैरह कैसे करते हो आप? बहुत ही मुश्किल काम होगा। वो अब क्लाइंट सर हमारे को बताता है कि भाई जैसे हम्म, सोनी को मैं लूँ एक फॉर एग्जांपल, तो सोनी का है कि ठीक है 1 ईयर के बाद अब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो अभी अब इसको एक्सटेंशन लेटर दे दीजिए। तो वो हम्म, सोनी बताता है इतने लोग हैं जिनको एक्सटेंशन देना है, अब इंक्रीमेंट लेटर है, सोनी बताता है इतना करना है। तो वो क्लाइंट हमारे को बताता है, लेकिन आपके सिस्टम से ये पता चल जाता है कि हमें प्रोएक्टिवली काम करना है, हम क्लाइंट को बताएं कि सर इनका नेक्स्ट मंथ में ये ड्यू होने वाला है। तो हम्म, वो चीज मिसिंग है मेरे यहाँ पर, नो हम्म। डाउट। तो ओवरऑल अभी आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है? लोगों से आपने काम कहा ना जैसे करवाने ऑटो पायलट की आप बात काम कर रहे हो कि नहीं हो पाया, तो कहाँ पे मैक्सिमम टाइम? काम करवाने में, लोगों को पुश करने में, काम करवाने में। तो फिर तो मतलब कि आप सारा काम खुद ही कर रहे हो अभी, हाँ वही है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा काम खुद ही कर सारा रहे काम खुद ही कर रहे हैं, राइट, हो तो फिर बिल्कुल। देखिए, राहुल जी की जो थ्योरीज है 100% परफेक्ट है, मैंने 2 बार कोर्स किया हुआ है। आई नो सर, आई नो। हम तो आपको अगले वाले रूम में मिलते ही थे, कई बार मैंने देखा हाँ, आपकी क्लास चल रही होती थी, हमारे जब क्लास होती थी तो राइट, आई। एग्जैक्ट। तो देखिए, मैंने हमेशा यही नोटिस किया है, आई गॉट 7 कंपनीज नाउ, ठीक है, और सारी कंपनियों में मैंने एक ही चीज एक्सपीरियंस करी कि देखिए, सिस्टम और प्रोसेस फॉलो किए बगैर कंपनी कभी भी सिस्टमैटिकली ऑटो पायलट पे आएगी नहीं, ये तो आप भी नहीं, मानते हो, ठीक यस, है ना? और एक चीज और मैंने ये चीज समझ ली इतना टाइम काम करके और इतने टाइम और पैसा बर्बाद करके कि आदमी कभी भी सिस्टम नहीं चला सकते, राइट, क्योंकि बाय ह्यूमन नेचर ना, आप समझिए कि वी आर नॉट फिक्स, वी आर नॉट रोबोट्स, ठीक है? राइट, कोई सिस्टम चलना है कि फॉलो होना ही होना है, तो वो अपने आप से कहेगा कि नहीं मेरे को लगा जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, Right. अभी काम तो चल ही रहा था, हाँ, ये हाँ, बीमार पड़ गया था, या ये Right. आईफोन था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो कोई ना कोई बहाना होता ही है। और Right. जहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत भी गलती करी, इट कैन टर्न इनटू अ बिग फियास्को, Right. राइट? तो मेरा तो यही कहना है कि हर एक जगह में ना कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी है राजकुमार जी, कि ना हमें सत्य। फील्ड में फीडबैक नहीं मिलता। जैसे मेरे लड़के गए, उन्होंने बोला कि साहब ये दिक्कत आ गई थी, हमें खरीदना पड़ा सामान, अब आपको क्या पता कि उसने लिया कि नहीं लिया, ठीक है? Right. आपका सेल्समैन गया, उसने कहा जी मैं तो 15 जगह मिल Absolutely. के आया हूँ, आपको कैसे Right. पता लगेगा कि वो मिल के आया कि नहीं मिल के आया? Right. Am I Right. right? Right. अच्छा, फिर वो मिल के भी आया, उसने रिपोर्ट भेजी, तो फिर आपने उसे फीडबैक दिया कि तूने अच्छा किया कि गलत किया? Right. 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 तो फीडबैक जो है, फीडबैक लूप क्लोज होना चाहिए, हर एक प्रोसेस का फीडबैक लूप क्लोज होना चाहिए। मेरी बात Right. समझ रहे हैं आप? तो Yeah. काम होना चाहिए और होते ही उसको ऑटोमेटिकली फीडबैक आ जाना चाहिए, और इसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए। राइट। अब मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहा हूँ। अभी टेम्प एक्टिविटी में सोनी ने बोला कॉल सेंटर, इनका ट्रिपल सी कहते हैं, कस्टमर केयर सेंटर, तो वो हम चलाते हैं। तो उन्होंने बोला 87 लोग हमारे को अभी रिक्रूट करने हैं फॉर 60 डेज बिकॉज दिवाली के आसपास। तो मेन इनका काम होता है कि जो प्रोडक्ट बिकता है उसके लिए उसको नो हाउ बताते हैं। बीटेक बच्चे लिए जाते हैं तो वो उनको समझाते हैं। अब मेरे एचआर से पूछा, सर मैंने 216 लोग लाइन अप कर दिए हैं, फर्स्ट डे 56 सेलेक्ट हो गए, ये ऐसे करते करते सर 87 सेलेक्ट हो गए। अब आपकी बात सही आ रही है दिमाग के अंदर कि जो रिजेक्ट हुए वो किस बात के लिए रिजेक्ट हुए, या उनको मैं बाद में कहाँ यूज कर सकता हूँ, या जो सिलेक्ट हुए तो क्या क्राइटेरिया था वो सिलेक्ट हो गए। ये वो बिल्कुल सही, मॉनिटरिंग, अब आप वो सही, मॉनिटरिंग नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपका ना काम बहुत फिक्स टाइप का काम है। राइट। यू आर वेरी लकी इन द सेंस कि आपके सारे प्रोसेसेस काफी हद तक सिमिलर हैं। राइट। आपकी पोजीशन कोई भी हो तो आप ना, आपको ये नहीं है कि भाई अच्छा ये काम आ गया तो पूरे नए तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारे तो क्या राइट। होता था ना, अगरबत्ती कैंडल में एक नया डिजाइन आ गया हाँ, कि नया अब डिजाइन। बंदे को ना मुरादाबाद भेजना पड़ेगा, आज तक मुरादाबाद से काम नहीं किया, अब ये मेटल से काम नहीं किया हमने। लेकिन आपका तो क्या है कि आपका तो आगरा से काम चल रहा है, तो आगरा से ही चले जा रहा है। आगरा से चले जा तो रहे। राइट। आपका ना एक्चुअल में देखा जाए तो आई एम अ लिटिल बिट सरप्राइज कि आपका, आपने अब तक किया नहीं, लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन अधूरा है बीसीआई का, यस जो यस मुझे लगता है। यस। इवन जो नहीं, वर्कफ्लो में आप बता रहे हो दिक्कत आ रही है, तो आपने उसको ऑटोमेट नहीं किया। नहीं किया। राइट। तो राजकुमार जी देखिए, मैं कहता हूँ कि जो चैलेंज मुझे दिख रहा है आपके एंड पे, कि आपको लगता है मैं टेक्नोलॉजी savvy नहीं हूँ हम्म हम्म और आप इससे डर रहे हो। और मैं हम्म। आपको खुद ही बता देता हूँ कि अभी मेरा वर्कशॉप आपने खुद किया था अटेंड, या किसी से हाँ, करवाया? मैंने ही किया। ये तो आपने मैंने आपके बहुत अच्छा सारे किया। वर्कशॉप। हाँ अच्छा, जी। और आपकी बिटिया सीए है हाँ। और आपके साथ है, हम्म। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, और आपने उसको नहीं करवाया। आ, हाँ, उन्होंने थोड़ी देर देखा होगा, फिर वो अपने फाइनेंस में बिजी हो गए थे। बट आपके शुरू में जब अप्रैल में एक दो प्रोग्राम मैंने किए तो वो भी मेरे साथ ही बैठे थे। यस, शी इज वेरी हैप्पी कि ये काफी अच्छा डिटेल्ड है पूरा प्रोग्राम। हाँ, तो डिटेल नहीं, मैं तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एम करता हूँ, क्योंकि राहुल जी हाँ। की स्ट्रैटेजीज मैंने ना 2010 में कोर्स किया, तो मैंने काफी ओके। स्ट्रगल किया। 2009 राइट। का पहला कोर्स मैंने किया था, 20,000 रुपये महीना लेते थे तब वो, ठीक है? ओके ओके हाँ, ओके तो वो मैंने तब किया था, 4 महीने का कोर्स था सिर्फ, ठीक है? ओके लेकिन वो इम्प्लीमेंट इतना नहीं हो पाया, सारी थ्योरीज वगैरह अच्छी थी, मैंने किया, थोड़ा बेनिफिट हुआ, फिर मैंने 2013-14 में दोबारा किया। ओके। 13-14 तक गूगल के सारे टूल आ गए थे, राइट मैंने राइट। सिस्टम बनाने शुरू किए। 15 तक ये हाल हो गया था कि राहुल जी मेरे पास में 10-10 लोग भर के भेजते थे हर हफ्ते कि तुमको राइट। टाइम आ रहा, संजीव से सीख लो। ओके कि मैंने ओके। ये जो 4-5 साल मेहनत करके वो सारे टूल बना लिए। अब राइट जैसे एचआर है, तो एचआर में ना फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू एग्जिट, राइट वी आर नाउ क्रिएटिंग अ सिस्टम व्हिच इज लाइक क्रेजी सिस्टम। राइट हम लोग अपने इसमें तो कवर करते ही हैं काफी कुछ, कि राइट आपको रिक्रूटमेंट लेटर देना है, वो इमीडिएट चला जाता है, उससे क्या राइट डॉक्यूमेंट मांगना है वो अपने आप भर देता है, अपने आप अटैच कर देता है विद ऑल रिकॉर्ड्स। मतलब राइट। आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा देख करके कि किस लेवल का सिस्टम है। अभी वाओ। तो मेरे लड़के एक सिस्टम कर रहे हैं जो कि एक एचआर की ओनली वर्कशॉप है। ओके एचआर ओनली वर्कशॉप वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक दिस 23rd। तो ओके। आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो तो एक ऐसी चीज है कि आप लोगों को तो मिस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसका कंटेंट क्या है। राइट राइट। आप वो डेफिनेटली चीज, डेफिनेटली। वो जो चीज है ना, आप वो 30 लाख रुपए भी दोगे तो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जो चीज हमने राइट तैयार करी है। और हमारा एचआर राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू एग्जिट, मतलब ट्रेनिंग कैसे करनी है, ठीक है? राइट इवन ट्रेनिंग भी ऑटोमेटेड है, ठीक है? राइट उनकी फीडबैक, हर उनकी मंथली ट्रैफिक लाइट्स बनी हुई है कि किस महीने किसका क्या स्कोर आ रहा है।
वाह सेम चीज अगर आप ग्राहक को दे देते हो कि जी ये फीडबैक आई, इसने ये काम किया, ये प्रूफ है जी, ये इसका एटीट्यूड है, ये इसकी टाइमिंग्स है, ये इसकी अटेंडेंस है, ये इसकी केपीआईज हैं, ये इसका केआरए के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, तो यू कैन जस्ट मेक इट क्रेजी। तो आप देख रहे हैं ओह यस कि मेरी टीम का पूरा एक ट्रैफिक लाइट का स्कोर आता है, मुझे पता है आज की डेट में कि मेरा कौन सा बंदा किस पोजीशन पर है। लेट मी जस्ट शो दैट टू यू वेरी क्विकली। श्योर दैट हैज मेड सो मच डिफरेंस कि मुझे अब आज की डेट में किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। वाह तो अपने आप वो लोग भरते हैं और कहीं से भी बैठे हों तो उनका सारा रिपोर्टिंग मेरे पास है आज की डेट में कि बंदा कर क्या रहा है। ओके मैं एक बार आपको क्विकली वैसे ही दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। श्योर तो ये तो मेरे को लगता है कि आपके केस में तो क्योंकि आपका तो मेन काम ही है, ब्रेड एंड बटर हाँ ही है। मेन तो बिल्कुल यही चीज है। इवन तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी एक क्लाइंट ने बोला यार जितने भी आप अपॉइंटमेंट करवाओगे मेरे को साइकोमेट्रिक टेस्ट भी उनके चाहिए। ये तो फिर ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए हाँ बिल्कुल सुपरवाइजर जी कौन है, राइट किसने फिल किया है, देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं, टाइमिंग के वाह हिसाब से, अटेंडेंस के हिसाब से, बिहेवियर एटीट्यूड के हिसाब से, प्लानिंग, ओह रिपोर्टिंग, वर्क ओह परफॉर्मेंस, माय गॉड ओह माय देख रहे हैं। और हर महीने की है हमारे पास, वाह हर वाह महीने की है। हम्म एपीआई क्या है, केआरए क्या है, और जिनके कम नंबर होते हैं हम इमीडिएटली उनका पीआईपी प्लान है वो एक्शन में आ जाता है। ओके ओके तो वो पीआईपी प्लान एक्शन में आ जाता है। जैसे आपने हायरिंग करी, कौन राइट सेलेक्ट हुआ, उनको लेटर जाने हैं कि तुम्हें इस दिन का इंटरव्यू होना है। आई डोंट थिंक कि वो मैनुअली आप क्यों कर रहे हो, हमारा तो फुल्ली ऑटोमेटेड है। अपने वाह आप उनको व्हाट्सएप चला जाएगा, अपने आप ईमेल चली जाएगी, अपने आप उनको पता लग जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है उनके साथ में। फिर इवन जो इंटरव्यू आप ले रहे हो, इवन वो जो इंटरव्यू है उनका क्या फीडबैक आया, बंदे ने क्या भरा, तो राइट कंसिस्टेंट सिस्टम होना चाहिए। और जैसे आपने कहा ना कि किस वजह से फेल किया, राइट and then you have to be in touch with all these people, right? ये तो आपका पूल है, आपने जो भी राइट एफर्ट लगाया यस एक्वायर करने के लिए, that was a big cost to you, am I right? राइट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली Right. तो और मतलब कि ये जो भी आपका सिस्टम है, पर्टिकुलरली आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन बी वेरी इजीली ऑटोमेटेड। मतलब और कोई कंपनी हो तो मैं कह सकता हूँ कि उसको शायद दिक्कत हो सकती है, कई सारे डिजाइनर होते हैं कि जी डिजाइन आई नो करना है, कुछ करना है, बट आपके केस में ऐसा कुछ है नहीं। नहीं Only thing is बिल्कुल that you have to fit technology, and मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा राजकुमार जी कि सर एज अ ओनर यू हैव टू डायरेक्ट, आपको ओके मशीन खरीद के लानी है, आपको हम्म ये पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, राइट आपको राइट कौन सा उसको चलाना है। ठीक है, राइट मेरा तो ये कहना है कि देखिए ओनर जब तक ड्राइव नहीं करते ना, जैसे आपको नहीं पता तो प्रीति कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर अगर सकती ओनर राइट को इंटरेस्ट नहीं है तो प्रीति उसको कुछ दिन इंटरेस्ट यस रहेगा, लेकिन ड्राइव जो ओनर में होती है, देखिए हम लोग इसीलिए एंटरप्रेन्योर बने हैं ना, क्योंकि हमारे में ड्राइव है। राइट राइट अगर एम्प्लॉइज में ड्राइव होती तो आप अब तक पर बैठे होते, हवाई में चिल कर रहे होते, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं राइट तो आई वुड से सजेस्ट कि आप इसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करें, और मेरे को लगता है कि बिटिया को साथ में लीजिए। राइट So let her be the engineer or technician. Maybe you can have one or two other people who are good in Excel in your राइट company, get ओके them trained, and you develop a system for each and everything. ओके इवन मार्केटिंग और सेल्स, ग्राहक के लिए आपको तो पूरा पोर्टल बना के दे देना चाहिए कि तुम्हारे इतने बंदे हैं, उनकी ये रिपोर्टिंग है, ये लोग हैं, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इनकी कंप्लायंस के कागज हैं। आप उनको एक ऐसा पोर्टल बना के दे सकते हो, वो पागल हो जाएंगे, और कोई कंपनी उनके मतलब कि वो कल को सोच भी नहीं पाएंगे कि हम किसी और पे मूव कर जाएं। राइट यू राइट कैन राइट यू कैन टोटली मेक देम रिडंडेंट। हमने तो राइट इतने सारे ग्राहकों के लिए किया हुआ, आप मानेंगे नहीं, L&T ने 2 साल घास नहीं डाली। ओके तीसरे साल फिर मैंने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने उनको इमीडिएटली पोर्टल बना के दे दिया कि तुम्हारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये माइलस्टोन्स हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट के बंदे हैं, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स ये रही और ये ओह प्रोग्रेस ये रहा। ठीक है, ओके आप मानोगे नहीं, मेरे को 2 साल बाद बुलाया और मेरे को डांट पड़ी एनआर ओह चैटर्जी से, जो कि वहाँ के क्लस्टर हेड थे। ओके वो बोले जा रहे ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा मुझे तक ये समझ में नहीं आया कि आप मुझे डांट क्यों रहे हो। कहते हैं कि हमारे को चेन्नई से डांट पड़ रही है कि सारे ऑर्डर टीएनएस को क्यों दे रहे हो। ओह माय गॉड ओके तो मैंने कहा सर इसमें मैं क्या करूं, मत दो आप। वो कहते कि तुमने हमारी टीम को बर्बाद कर दिया है। वो कहते हैं कि नहीं, इनके है ना प्रॉपर, इनका इंट्रानेट है, रिपोर्टिंग आती है, ये आती है, वो किसी और से काम नहीं करना चाहते, और चेन्नई को लगता है कि हम लोग तुमसे कोई पैसा खा रहे हैं। लाइक दिस इज व्हाट वी डिड टू। डिपेंडेंसी हाँ, मैं बता रहा हूँ, होंडा इज आवर कस्टमर सिंस लास्ट 8 इयर्स। उनको हमने ओके सारा कुछ ऐसे करके दे रखा है, उनकी 400-500 लोकेशन, सारे यूनिट का ना पूरा इंट्रानेट बना के दिया हुआ है। एक ओके एक चीज उनको दिन हो रात हो, ऑर्डर देना हो, कंप्लेंट देनी हो, एस्केलेशन करनी हो, किसी बंदे का डिटेल देखना हो, राइट उसी में कर रखा है।
वाह, इवन फॉर एम्प्लॉइज यू कैन बिल्ड अ सेल्फ सर्विस पोर्टल कि तुम यहाँ जाओ, ये देख लो, हमारी जान मत खाओ, तुम्हें सैलरी स्लिप जनरेट करनी है, ये करना है, ऑल ऑफ दैट कैन बी इजीली मैनेज। any information you can get on portal. टोटली टोटली। Yeah. आपको तो आई थिंक कि ये चीज कर ही लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर, ठीक है, मैं और आपकी रमा से डिस्कस करके आई क्लोज इट। या देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना आपकी बेटी, तो मेरे ख्याल से उसको, या बेशक एक लड़का और साथ में ले लें कोई, तो आप लोग ड्राइव कर सकते हो उसको। राइट, डेफिनेटली सर, एंड डेफिनेटली। ये इश्यूज हैं क्योंकि सिंस यू ऑलरेडी हैव द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, राइट, राइट, कि राइट, एफएमएस क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और हमने क्या कर रखा है कि उनकी ना सारी शीटें जो है थ्योरेटिकल चीजों को लेके ना प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रखा है कि राइट, आपको दोबारा ना देखना पड़े। जो भी सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनिंग लूप है। राइट। उसने ये काम किया, हाथ की हाथ सुपरवाइजर को रिपोर्ट चली गई, हाथ की हाथ सुपरवाइजर को उसका फीडबैक देना है। वाह। आप बात समझ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। द मोमेंट आप पिक्चर में आ गए, तो हमारी इवन देखेंगे आपकी ट्रेनिंग है ना, आपके यहाँ 7,000 लोग हैं, 70,000 लोग, फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनिंग। ब्यूटी, तरफ से वीडियो जा रहा है आपकी तरफ से मोटिवेशन के लिए, कभी आपकी एटिक्वेट्स की वीडियो जा रही है, कभी ईमेल पे जा रहा है, जैसे चाहो फुल्ली ऑटोमेट। एंड आपका मतलब कि फर्स्ट एड के लिए आपने ट्रेनिंग दे दी, ठीक है ना, सेल्स की आपने अलग अलग लोगों से वीडियो रिकॉर्ड कर करके भेज दी, उनके मोबाइल में तो चल सकती है। राइट, राइट। तो राजकुमार जी, करने के लिए तो बहुत कुछ है। नहीं, आई नो, बिल्कुल सर, एंड बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे आपसे एक 1-to-1 अलग से रखना पड़ेगा टू डिस्कस, बिकॉज मेरा गोल ये है कि लोगों तक ना मैं टेक्नोलॉजी पहुंचाऊं कैसे। राइट, तो राइट, आज की डेट में ना लोग कहते हैं कि भी हमें बंदे नहीं मिलते, जैसे डीएमई है, एमआईएस के राइट, लोग हैं, तो मुझे राइट। थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे लगा नहीं पाते क्योंकि उनको सही बंदे नहीं मिलते। तो कैसे हम लोग मिलके कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है सर, इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, और जिस तरीके से भी आपने बताया, हमने माइक्रोमैक्स और इंटेक्स के साथ भी 5-5 साल सर काम किया है। तो ये इतने बड़े जॉइंट, आपको मालूम है, इंडियन ब्रांड में उस टाइम नंबर 1 पर थे, माइक्रोमैक्स एंड इंटेक्स एंड ऑल दैट। इंटेक्स के तो जो आपके ओनर हैं, क्या नाम है उनका, नरेंद्र बंसल या क्या नाम है उनका? हाँ, बंसल जी, बंसल जी। बंसल जी तो हमारे पड़ोसी है ना, डीएलएफ आई नो, में आई नो, पहले। आई नो जी। उनकी जो वाइफ तो है, वही याद है, हमने मतलब 2012-13 में जो लैपटॉप, इनका जो आईपैड आता था, पैड आता था, दूसरे तीसरे, उनकी वीडियो अपने 2 सेल्समैन को बिठा के, भी तू सेल कर और तू एक वेंडर है, एक खरीदने के लिए आया, तो वीडियो बना बना के उस टाइम पे दी हुई है। हमने औरों के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए वो चीजें है नहीं। आप ये देखो ना, देखो मैं बताऊं क्या, आज की डेट में ना देखो, काम तो वही है, बट उसमें आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। आप राइट। देखो, हम ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, या पूरा हम लोग ना पूरा सिखाते हैं कैसे, पूरी नीड एनालिसिस टेक मास्टरी में मैं पूरा कवर करता हूँ कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसको कैसे ऑटोमेट करना है, टेस्टिंग भी करनी है। ट्रेनिंग की बगैर टेस्टिंग के यूजलेस है। तो आप ट्रेनिंग टेस्टिंग भी करोगे, और वो भी अपने आप से। वाह। हर महीने टेस्ट लो, हर महीने स्कोर आएगा, बंदा अपने आप ही हो जाएगा। देखिए, वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज, आपके केस में तो बहुत easy 100%, है। 100% ट्रू। नहीं, आई एम श्योर, बल्कि आपको तो काफी बेनिफिट होगा। एचआर वाला भी जरूर करिएगा हमारा वर्कशॉप, क्योंकि नहीं, मैं बिल्कुल एचआर वाला वर्कशॉप करता हूँ। और किसी के केस में तो चलिए, कई लोगों पे तो इतने लोग होते नहीं, बट आपके पास तो लोग इतने सारे हैं कि हाँ, आई एम श्योर। मैन पावर है यार, 60+ तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जो मेरे अपने ऑफिस में पैन इंडिया बैठे हुए हैं लोग। तो तो एचआर वाला तो हमने बहुत खास तैयार किया है। एचआर के लिए तो एचआर के फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू एग्जिट सब कुछ कवर हो जाता है। 2 महीने का प्रोग्राम है ये। और बाकी टेक मास्टरी से आपकी सारी वर्कफ्लो खत्म हो जाएगी, जो हाँ, वर्कफ्लो। वो भी जरूरी है, टेक मास्टरी भी बहुत जरूरी है, नहीं नहीं, वो श्योर। वर्कफ्लो और क्लोज करने के आप लिए। अपने आप से इसको जरूर करिए, क्योंकि आपका देखिए, चाहे आपको टेक्निकली समझ में आए ना आए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लगाना है। और राइट, अपनी बेटी को, अपने जो भी एम्प्लॉई है उसको बोलिए। और मेरी टीम ना इतना अच्छा सपोर्ट देती है, राइट। बहुत सारे ट्रेनर्स के पास ना सपोर्ट नहीं होती। हमारे तो लोग फोन कर करके तंग करते हैं कि भैया और बताओ ये क्या तुम्हें ये रुक गया है, इसको शुरू करो। राइट, भी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अब एब्सोल्युट सर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पूरा जोश है, तो मैं ये रमा जी से डिस्कस करके और क्लोज करता हूँ श्योरली, डेफिनेटली। और इसके अंदर सर पेरोल भी वगैरह आप दे देते हैं, जो हम पेरोल क्रिएट करते हैं, जो एचआर का मॉड्यूल हम बना रहे HR। हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में, स्लिप जनरेटर भी है उसके अंदर में, अटेंडेंस कैसे लगानी है, 360 हाँ, डिग्री अप्रेजल कैसे है, वो सब राइट। कवर हो जाएगा। वाह, ग्रेट, 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 दैट इज यूजफुल। हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक जो है। टेकमास्टरी है, टेकमास्टरी में ना हम हर एक डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, लेकिन इतना गहराई में नहीं जा पाते। बट व्हेन यू हम्म, क्लब इट विद आवर एचआर, तो देन एचआर विल फिल ऑल द गैप्स आल्सो रिलेटेड। राइट, 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 बिल्कुल ठीक है सर। तो
all the steps one by one will get covered in that. Very nice, sir. बिल्कुल ठीक है. Okay जी, राजकुमार जी, nice. So talking thank you to very much, sir. और मैं फिर रमा से कांटेक्ट करता हूँ. ठीक है, और ठीक है. then we'll proceed further. Yeah. Sure जी, sure. I look forward. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. Thank you. अरे रमा कोई आ रहा है क्या अभी? और रमा, नीतू, सर एक सर आने वाले थे, चंद्रशेखर, मैं उन्हीं को कॉल कर रही थी अभी. ठीक है. अच्छा सुनो, फिर तुम्हें इनको फॉलो करना है, ठीक है? इनसे तो आप बात कर ही लोगे ना? आप इनसे बात कर लोगे हाँ ना? सर, इनसे मैं बात कर लूंगी. मैंने ना इनको ना पीआई भी शेयर किया हुआ था. हाँ सर, मैं कर लूंगी. इनको एचआर का वाला भी करा देना, ठीक है? एचआर और ठीक है टेक्नोलॉजी सर, ठीक है. दोनों के लिए कर देना, ठीक है? और जो पहले वाले सर थे उनको ठीक कौन है सर. देखना है? सर टेक्मा सर उनको सिद्धार्थ से बात हो रही है उनकी. चलो ठीक है, वो सिद्धार्थ देख लेगा. नीतू, तरुणा, आपको समझ में आ रहा है? जी सर. ओके ओके. हाय. Hi, sir. Good evening. हाय, हाउ आर यू? How are you, sir? ऑल गुड, ऑल गुड. सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम. आपके यहाँ एडमिरल लॉजिस्टिक्स लिख के आ रहा है. Oh, okay. Is it? Maybe we have registered that way. My name is Chandrasekhar Chavan. ओके ओके. वही मैंने कहा, अभी मेरी बात ही हो रही थी. आई वाज आस्किंग देम, तो कहते हैं हम चंद्रशेखर आने वाले हैं. Okay. Yeah. So it's my pleasure to talk to you, sir. Same here, same here. Chandrasekhar, tell me a little bit about your company. What all you do? Sir, basically we are into logistics. I mean, we are the international freight forwarding company. We are Okay. into customs clearance. Okay, We nice. have offices in Mumbai, Chennai, Bangalore, Vizag. We So also is have offices in China. Is it something similar to this Sea Trans, Amrit, Sea Air Cargo, CMI Logistics and all? Yeah, Sea Air Cargo is, I think, similar to that. Okay. We handle imports and exports. We've got another one called Andes Impex. Andes Impex. Andes Impex, I'm not aware of it, sir. So We are purely into Impex means maybe import. They are maybe a trading company. Okay. But we trading companies are our customers. You know what we do is we pick up the shipments and we deliver the shipments. You know. So you are basically handling containers. inward as well as outward. मतलब export shipment Yeah. as well as import. Yeah, we handle exports and imports both. We do that. Oh, We are there in the industry since almost more than 15 years now. So since like 2000. 2005. 1996 to 2006, I was handling Delta Exports. So then at that case, I was, involved with the shipping and this thing. Yeah, you were telling me that. I understood. Like you might be knowing because for your exports, you need a freight forwarder. Yeah, absolutely. I will introduce you to them if you like. So Yeah, no issues, sir. No issues. Yeah. It will be. I had set up my own EOU in Daruheda. I had gone to Nagri to set up my own EOU. So now that EOU is no longer there, but we still have a plant there and we do huge amount of exports. Oh, very good, sir. Very good. We do handle a lot of exports from Hyderabad, Chennai, Mumbai. Okay. We have office in Mumbai. I'm based in Hyderabad actually. Okay. Headquarters in Hyderabad. Okay. Mumbai, we work with a company called CMI Logistics. Naveen Sankani. Okay. Could be. I heard about this, I think. Yeah. CMI is pretty big company, I think. But anyway, अभी तो मुझे भी याद नहीं है. It's been too much time. So tell me. what you are doing is more than enough
You don't even need to look into any other things, you know. नहीं ऐसा नहीं है. देखिए, my objective is again to understand all the businesses, to understand how I can help them better. Yeah, it's a really a fantastic job what you're doing. I mean, I don't find such people in India, you know, who really personalizing, you know, things like this, you know. Maybe they have some customized not customized, but maybe ready-made some kind of courses, you know, just to temporarily to understand the things. But, you know, to customize and interact personally and understand the requirements and all, I think, you know, Yeah. you are the first person to interact, you know. So In tell fact, me- I was tell looking me- for such kind of Tell me a little bit about what challenges you are facing, you know, now that you know a little bit about our program. So what are the issues that you're facing on a day-to-day basis that eat up your time? What are the major challenges that you're facing? So basically, you know, there are so many resources. You know, you in one of the interactions also told that there's so much information available. But you know what exactly is required for you is really you need to understand, and the implementation part is a major challenge. What we do is, you know, we take up a lot of things. You know, somebody said you use this. Somebody said that, you know, this is good for you. Then what we get prompted, and, you know, we buy it or something like that. But, you know, practically is implementing it's becoming a challenge for us. So that's why, you know, I've been slowed down on taking any decisions. Even in your case also, like the last time I took this course because I wanted to understand but I'm going very slow because I know that I'm very weak in the implementation part. But I'm very much interested, but I don't know, taking our time and for this, it's becoming a challenge for us because we are so busy in the day-to-day firefighting and all those things. We want to come out of it, but somehow we are not getting any room to come out of this, you know. So challenges are like, sir, we are on a ERP, you know, there's a software we are using, a company called iCode Technologies. They are based in Coimbatore. They have an office in Bangalore also. This is a logistics software where from the lead generation till the billing, you know, this is a software. But here is like there is no CRM and there is no further after billing, you know, there's no system of following up. They have some kind of mails going from the system and all that can be done. But further tracking of the shipments, track and trace, auto updates to the customers. In fact, I want to come out with the daily updates to the customers going. I want to get app also facilities so that every notification, even from the billing part, from the quotation, or daily update should go through a app, something like that. We have our plans, but we are not getting any proper team to handle this. So we just kept quiet. We said, you know, let's not, because we burnt our fingers giving some projects to someone and, you know, they're not done things properly. Then we thought, let's keep quiet, and once we are very confident, once we get some good people, then we can think about it. So this is a story about us. Basically, if I would understand this, so that you want to, you know, build some kind of a system where you can keep the customer in the loop every step of the way. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Because of logistics, every step. Sir, I'll tell you very briefly about our business. Like, you know that, you know, if you are an exporter, like right from the pickup, you know, if I pick up the shipment, then the information should go to the customer that we have picked up the shipment. Right. Then comes the trucking part. You know, the transportation department is involved. And then the customs clearance, customs department is involved. Then the port shipping line, the port is involved. Then, you know, the shipment is in the transit, you know, it goes to the destination in other countries. It is in the transit. We should tell them that it's in the transit. Then it goes to the destination and reaches the destination port. Then we alert them saying that this is reached. And there the customs clearance is also done. Then the deliveries are done, you know. Every stage we need to keep them posted. This is what is happening manually right now. What we do, we also check with the sources through sometimes by emails. We get the information. Sometimes we get through the websites, their websites. We cut copy paste, send it to the customers. So this is we have a team for that. You know, we 3-4 people are dedicated for that to update to the customers daily basis. You know what is happening to the shipments, keep them informed about it.
but still we miss something or the other. Something is missed. Okay. We want a system like okay, it is picked up. Send a notification. It is under customs clearance, send a notification. Any query, we need some documentation, send it through a system that these documents are missing, please submit or please upload this document. So we get it and we submit to the customs. Something like that. I'm just looking. I'm quite happy to hear that. Okay. So this is, okay, I will not give you the solution right now, but you first tell me your problems. Yeah. Okay, this is something that is very, very easy to solve. Okay, this is something that is very, very easy to solve. Okay. Pardon, sir? This is very easy to solve. Okay, this is something that is not going to take a long time. Okay, this is something that is pretty easy to solve. Okay, now come with the other challenge. What are the other challenges? Yeah. Other challenges like, suppose you are a customer, you're an exporter, you're exporting to 10 countries, let's say. Okay. So what you every day you have some shipments. What you want is, look, I want a 1 month schedules. And for us, to compile the information, keep it in one place and send it to the customers. Okay. That's also a bit difficult, looks like, maybe in your, you're a tech person, so for you might be easy. But what happens, different customers have different requirements. You are there, sir? Okay. Yeah, I'm here, right here. Let's say, few customers they want service to the Far East, Southeast Asia, those countries. Some people want Gulf and Middle East. Some people want Africa. Some people want Europe. So we have shipping lines. Let's say around 15 to 20 shipping lines. We want their schedules to be placed at one place. We want a system like, okay, this customer wants the schedule of this. That is already ready with us. Just with a click, it should go to them. Airlines schedules, like, what is the frequency of the flights to US, to Europe, to Africa, to Gulf, Middle East. They want service particular location. The pricing part and the schedules. At the click of a button, it should go with the price. It should go with the schedules. It could see it should be some system to pull the information. Let's say you are developing some software. The software should pull all the from the resources, put it at one place and keep it for us. And when we want it, it should take it and it should go to the respective persons. Because what happens, otherwise what will happen, we have to contact 10, 15 people. We have to check, we have to compile everything and again put it on a system. Then when customer wants, then we have to send it. So what is happening? Lot of efforts, manual efforts are involved in this. A lot of discussions are involved in this, and customers sometimes say that, yes, sir, मैंने जो मांगा वो आपने दिया ही नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आप ये दे रहे हो, and all this duplication of works and all always there. Capturing their requirements and immediately giving them this information without actually having to, do the whole thing again, right? Yes. Capturing, उसको capture करना, so it's like a rework for you, right? Instantly, उसको self-service portal बना के देना चाहते हो आप. Pardon, sir? Something like a self-service portal. He can immediately upload self-service immediately get his questions answered. Am I right? Yeah, immediately gets a question answered. Sir, I want to get into, to be frank, I want to get into computer technology because I put high tech in my company name because I want to tell to the trade that we are a technology driven company. But somehow, sir, I am so pissed off with things. I tried a lot with many things, but nothing is working out for me. So primarily, a lot of companies have the same experience. Even I have had very bad experience. I get my own ERP developed. I got my CRM. I spent lakhs of rupees. So even servers, I think I purchased must be 12 lakh rupees way back in 2007. But unfortunately, they are creating these systems not based on a particular company's requirement. So sab khichdi hota hai. It's a mix up of requirement from different companies. And the things are so complex that, we don't have that kind of people to understand. Because we don't have IITians and, like people from IIMs on our rolls, right? Yeah. Those things work. So best is that you take your existing system and you automate it. Something like, from a cycle, you go to a motorcycle instead of trying to go directly to an aeroplane. That is what we did. We did that. Actually. Yeah. So tell me one thing now.
since you are yourself, in terms of using technology, you are already convinced. So you're not someone who has to be convinced that technology. No, I am not. Right. The So problem with me is I don't know where to start. Huh. Somewhere, I start from the middle, I start from the end. I don't know from where to start. So I will tell you, I'll give you my suggestion as a business owner. What I would recommend, very first thing is to start with yourself. Okay. So one thing is very clear, that you are facing problem with implementation. Like you did my course also, but you will not be able to implement it. Am I right? Yeah, you're right, sir. So very first thing is that you have to understand that you are not the implementer. You will never be able to implement. You are the director. If you become the doer, you are the person who's going to do these things. They will never happen. Okay. Yeah. So you forget about it. So what you need to do is that as a director, you did the right thing to attend the course. But what you actually need to do is to find someone within the company who is analytical. So do you have someone who's, logical minded, who's very good with Excel and all? Excel and all, you're right. Yeah, we have people who knows very good Excel. We have 2-3 guys. You have 2-3 guys. So take at least 1 or 2 of those guys. Okay. Now you attend the training with them. At the time of the training, every time you get the training, you sit with them and you will go over the points. Okay. Now there is some technical thing. Some machine is there. What you have to understand is that okay, iska benefit kya hai? What is input? What is the output we are going to get? How to run it is not your headache. That is the headache of these 2 guys. Okay. Then you just give them a target कि इसको कैसे करना है तुम देखो और मुझे मतलब नहीं है, मेरे को ये output चाहिए. For you to understand what this technology does is the most important. And what very thing that you have to be disciplined about is that you have to fix a weekly schedule. So like for example, you decide कि okay, ये training किया हमने हफ्ते में एक दिन example के लिए training किया. Now, if you do not fix a time for 2 to 3 hours to review it, okay, even if you give like 2 hours, like you say, okay, Wednesday, 3 to 5, we are going to sit on this. Okay, and come what may, you will not going to, not going to budge. उससे पहले कर लो, उसके बाद में कर लो, but वो review होना बहुत जरूरी है. That is all, Chandrasekhar. It's as simple as that. Yeah, I know. I tell you what. You told me about the calendar and following that. So for what you are lacking is delegation. No, what you are lacking is scheduling and delegation. So आप अगर discipline नहीं होगे, one thing you have to understand that कि if you are going to do it yourself, कि मैं ही सीखूंगा और मैं ही implement करूंगा, तो it will never happen. Because once you are learning these things, till the time you teach it to someone else, they will not understand, and you don't have the time or patience to do that. Am I right? Yeah. So what you need to do is कि whatever training you do it with your team. Don't do it alone. Okay. At the same time, when the training ends, take 15 minutes time and give them the notes ki, okay, this is what I want you to get implemented. So we always, हम क्या recommend करते हैं, what we recommend to people is that you come with your team, you give your team the assignment and you tell them you get it done. Whatever support you need, my team is there. Like suppose if I were to support you, कि ये problem आ रहा है, वो problem आ रहा है, I cannot support you, right? Because so I readied a team with me because, in all my companies, I did the same thing. Because one thing you have to understand that only technology can help you get rid of your routine firefighting. Abhi jo aap busy ho, wo technology se theek hoga. And this process that you were talking about, ki, every stage something happens, some milestone is achieved, and automatically the email or the notification will go with the relevant data. That is nothing, it's a child's play. Okay. So this is nothing but a flowchart monitoring system. Every order, my boys, they do it every day. Okay. So if you like, we can arrange a small meeting with Abhishek. He can show you for one particular industry. And then, maybe later on, he can also help you develop the same thing for your industry. Okay. So very, very easy. इसमें कुछ भी नहीं है. ये तो मतलब ऐसी चीज़ है जो कि आप instantly कर सकते हो. Even by, building a self-service portal where customers can put in their. Just give me 1 second. Someone is calling me again and again. Some kind of emergency, I think. Hello. हाँ जी, कुछ emergency है? हाँ जी, कुछ emergency है आपको? आप please फिर आप मेरे को call मत करिए. So some funny people, I hardly take any calls. Okay. Calling again and again, I thought there's some emergency. So
So what you need to do is that कि ये तो आप आसानी से कर ही सकते हो, आपका ना आपका monitoring strong होना चाहिए. What I feel is that you're getting more into doing than monitoring and review. Yeah. Are you having a meeting rhythms fixed in the company? Yeah, we do have. We do have. Like a very fixed meeting system कि ठीक है 10 to 10:15 meeting किया सुबह और सब discuss कर लिया. Do you have a daily meeting schedule? Do you have a weekly meeting schedule? Yes or no? Yes, yes, sir, we have. Every day. What time? Not a fixed time, but with the HODs I have in the meetings. With the HOD, what time? In the morning, let's say about 11. Sometimes we have at 11. Sometimes we have 11:30. No. Chandrasekhar, this will not do. And do you have a system like do you know what to discuss? Are there specific things being discussed there? Yeah, most of them. No, Most of them, 70 to 80%. No. What is the pattern? What are the things that you ask them to put? Like, is there a WhatsApp group where they put everything? Yeah, we have a WhatsApp groups within the departments, and we have No, HOD groups. No, I am very, very specific. Do you have a meeting rhythm or not? You don't seem to have a meeting rhythm in the company. Meeting rhythm. You don't have a meeting rhythm in your company. Rhythm means? There is a 15 to 20-minute meeting at exactly fixed time with a very, very fixed agenda. Meeting will start at suppose 10 and it will finish by 10:15 under all circumstances. Okay. Then you will have a fixed meeting on Monday. That meeting is 1 hour. Then again, it has a very, very specific agenda. Okay. Mm-hmm. And that will also finish within a certain time. Okay. Mm-hmm. So what I'm going to do for you is that out of my videos, I will take out one of the videos and I'm going to send it to you. Okay. Chandrasekhar, I want you to start following it. You have to fix your meeting rhythms. So weekly or monthly एकदम fix होता है. इसका एकदम particular technique follow करिए आप. I'm not talking about other meetings. You might spend any amount of time in other meetings. That will not help you. Okay. The way I tell you, just follow that. And you will see the difference in 1 week's time. Okay. And implementation, the only thing is that you're lacking delegation. Implementation, don't put it on yourself. Take help of your team. You have to rely more on your team. उनको train कराइए और उनको monitor और control करिए. Encourage them, motivate them, and sit with them. Okay. Let them do the job, and you give them you tell them कि ठीक है, they should not be overloaded. You have to give them something during the week in which they can implement these things. You don't have to buy any software. You don't have to invest, in buying servers or anything. That is not going to help you. That I can tell you even now. Even if you're thinking of developing mobile apps or anything, again, it will be the same thing like what you have experienced before. Because you will end up creating something that is going to be so big that your people will not be able to run it. So ये हो जाता है easily. It's not really a big thing. So you saw some of that during the Tech Essentials. Okay. So of course, if you go ahead and in the Tech Mastery we cover this step by step. But what practically you need to do is basically don't need to come alone. You have to be with your team. Yeah. Okay. If you have 2 people along with you, because one brain is better than other, and if you have 2 people, luckily, because many people don't even have people knowing Excel. Okay. Yeah. If you're already having, then it's not really a big challenge. You are keh rahe ho na, this can be developed in not even in take 15 days to develop this. By own team, your own team can develop it. My team can help them, guide them, but it's not a challenge. एक step करेंगे ना तो दूसरा step easily हो जाता है. Adding one by one, it's very, very easy. Yeah. And even for every step, you can send them the papers, you can send them the attachment, you can send them photographs. Like they will go crazy. Yeah, you told me that. Many of my students like Andy's and all, they have in fact created complete intranet जिसके अंदर पूरा live उनका documentation दिखता है. Every customer has their live portal with what shipments are incoming, what are going, what are the documents, everything they have uploaded. So in fact, Alok Beswal, in fact, one of the thing I invited him to show this. Okay. One of them, I invited him to show this exactly long time back. So he's got very big customers, very, very big customers, just because, they created this portal for them and in which they can, immediately see what is happening to their shipments. So you can easily do it. If you're already having some Gmail accounts, तो उसी से हो जाएगा. You have the G Suite and all. तो उसका यूज करिए आप. You don't have to really actually buy anything. तो यही चीजें जो अभी आपने सीखी है ना Tech Essentials में, these are very similar. Yeah. Sir, you help also in the digital marketing side and all? We don't help in digital marketing. Just give me 1 second. I'm going to switch on the lights.
So digital marketing is not my area of expertise. I can connect you to people who do that. Okay. But I tell you what is your objective? Exactly बताइए. Where you are facing the challenge? We want to get into digital marketing, like, No, why? Google AdWords. No, new lead generation. Is new lead generation a problem? Yeah, that's a lead generation basically. So currently what you're doing with lead generation? Sir, we have database, we with different sources, we get database. We start sending mails to them. And now recently we started paying for the Google AdWords. We were getting some inquiries through Google AdWords. And we have some contacts network, through that only it's happening. I mean, there's nothing. So tell me one thing, like getting data is one part of it. So I believe that you must already be having a lot of data. The question is that, are you able to convert them? No, we are not much converting. We're not able to. Problem is more in getting the leads, or problem is more in converting the leads? Because many times, what happens ki even older customers forget about you. They start giving shipments to other people. Yeah, you told me that. Yeah, that's a very good, nice thing, because that do happen because we have already forgotten them. And when we remove the list, it is again, it looks like, array, this we have forgotten. Let's go back like that. No. See what happens. Like many of my customers now, they start advertising on Just Dial. They start advertising on Facebook. What happens? They get 100 leads in a day. Okay. Now there's no use at all. Yeah, they are no use because there are so many leads that no one calls them. Then we started this system where we got up a system of mail setup and a system of WhatsApp setup. Once we receive an inquiry and we are educating them about your product, in case your service, what are the things. So you will have to basically set up that kind of a system. Whatever inquiries are coming in, suppose do you have people going and meeting other people? You have salespeople going and meeting. Yeah, we have a lead team. Yeah, so when they go and meet, even then you can start that lead nurturing. So that really works in an amazing way. Because what happens, personally, तो आप इतना follow नहीं कर सकते. Okay. Lot of my customers, they reported कि जहाँ पर 4-5 months लग जाते थे, now they're getting these conversions in a matter of 2 or 3 weeks. Once they started those things, because you are doing that automatically and you don't have to be involved. You're just putting the name, number, and email ID, and you have created a series of messages according to the formula, the funnel formula, and right from creating awareness to getting to the consideration stage, then for getting him to take the action. So you can create all of that. One-time job here, and then again even communicating with the existing customers by giving them some special information, because a lot of things that they don't know about regulations and things that are coming in. Am I right? Yeah. So those things are already there. Yeah. तो वो सिस्टम आप सेटअप कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए. आई कैन रिकमेंड समवन टू यू, बट आई वुड से दैट बिफोर यू डू डिजिटल मार्केटिंग, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द इंक्वायरीज दैट कम इन, because personally your people may not be able to handle them continuous basis, right? One time they can go and meet, 2 times they can go and meet, but every time even if you meet, so they say कि नहीं अभी नहीं है, बाद में आना, keep in touch with us. But how will you keep in touch? So through a system of emails and WhatsApp, you can easily build that system, Chandrasekhar. Yeah. That's what I would recommend, because it's a one-time effort. It is not that it's going to be like a cakewalk कि ठीक है नहीं अभी 1 घंटे में नहीं होगा. आपने उसके लिए 4-4, 5-5 घंटे लगा के 2-3 बार आप बैठेंगे तो हो जाएगा. But the good thing about that is कि एक बार हो गया ना, then to use it is very easy, and then no longer effort is required from your side. You're right. So all these systems, the principle is that कि one time you will have to make an effort, right? But then once you are solving it, you're solving it permanently. This is what I've seen over and over again. एक भी सिस्टम अगर ठीक से सेटअप हो जाता है ना, तो उस एरिया में टाइम नहीं लगेगा आपका. Your time will not be involved in that area anymore. That is what I would recommend. Yes, sir, you're right. Absolutely right. I mean, it's too late for me also. I mean, sometimes I regret ki, I should have done that before. But when having done your course, I mean, talking to you and all, I think a lot of things to be done. We are far behind what we've been doing. So I'm okay with it. I want your support, help. No, there is no problem. We actually, we see this day in, day out, because every entrepreneur is actually having similar issues like what you have. And they are creating their own systems. Now, what happens ki, ERP software, CRM software, these guys, their main objective is to sell the software. And our main objective is to enable the business person so that he's not struggling with the system. So, abhi growth ki to baat hi nahi kiya aapne, right?
Am I Yeah. right? You're not even talked about how to grow the business. Right Yeah. now, you can only do that once you become free. So let us do one thing. I'm going to send you the video. I will ask who are you in touch with in my team. Sir, I think one Mr. Siddharth, I think. You are in touch with Siddharth. Okay. So what I will do is, okay, I have here Taruna. Taruna, are you there? Taruna or Neetu? Yes, sir. अच्छा नीतू तो देखिए आपको टेक केयर करना है. आप एक काम कराएंगे कि एक तो यू मस्ट मेक श्योर कि मैं ना सर को वीडियो भेजूंगा. जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दैट. ओके. ठीक है सर. I just have to locate that video and send it to him for the meeting rhythm. Okay. Chandrasekhar, I would request that you immediately start following it. It's very, very easy to follow. Okay. Sure, sir. Sure, sir. I'm going to take out that particular section and give it to you. Okay. And the second thing is that I can also ask Abhishek to give you a small this thing how they actually create that workflow in which you are getting those notifications. Yeah. Right. Okay, So sir. that can be very easily done. There are multiple ways of doing it. So whenever that work gets done, your people can, create a linked form. That form can keep on going stage by stage, and automatically that information gets emailed. And then other way to do it is through Google Sheets, through a FMS system, but he can show you both of them. Okay. Fine, sir. Fine, sir. No issues, sir. Any other thing you like to discuss? I want if a website, my website, to website development side, like that, I want. Do you think that I need promotions in the Twitter, blogging, and all these things is required? Instagram. So whatever you do before you do that now, because the one thing that in your case, what I understand, shipping is basically trust based. Okay. Mm-hmm. If you are advertising, तो आप क्या advertising तो कर दिया आपने, but how will you build credibility? Mm-hmm. No one for me as a customer, if I look at you as a supplier for myself, and you are into freight, very good way will be to get referrals for you. Yeah, yeah. I think you should focus number one on that. Second is that there is a certain number of people who already know you, but who are not doing business with you. Am I right? Yeah, you're right. You must be having 200-300 clients who already know you, but they are not working with you. Am I right? Yes, sir, you're right. Can you make a database of that? And now what you need to do is you need to set up a automated nurturing system through WhatsApp and through emails. You have to make up a series of value letters. So send them valuable information. You're not at all talking about what services you do. Don't do that at all. Just tell them, okay, you have to take care of this while packaging. You have to take care of this. These are the new rates that are on this thing. So every email you can give them some value, some information that is useful for you. And I am sure in your case, I even have this Rakesh Saraf, InfoDrive India. InfoDrive, okay. He's my oldest student, Rakesh. Okay. So I trained Rakesh, I think 4 years back. So they have been doing this and crazy amount of thing they have been generating. So the same technique, you should use, because what's happening for you, it is important to build credibility. Now, when they see that there is one company who has in-depth knowledge of this field, even then after that, your people approach them, they will be more receptive. Are you getting me? Yes, sir. So that should be the right approach. And then after that, once you have that system in place, then you launch Twitter, then you launch Instagram, because right now, you're talking about getting more inquiries, but then wo inquiry order nahi dega aapko immediately. You need to do something. And again, what I would recommend is to start a program where, you can have some kind of a Zoom training or a mini training on different aspects. Ki clearing mein kahan dikkat aata hai, how you should make the papers, why your shipment can get stuck. Okay, or why, how to avoid delays. What are the major concerns? You would know better. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So you should do that better. Build your credibility. Once you build your credibility and you're doing something, online on YouTube or on Twitter, but things like this, don't advertise. Advertising will not work for you, Chandrasekhar. Because your job is more like a doctor, is more trust-based actually. When people know, okay, these guys are expert in their field, automatically they will come to you. Yeah. You just need to reach out to them and send them all these beautiful things. So this will make a big difference. And I don't see too many people doing it. So there is a green field for you right now. Yeah. Okay. Okay.
तो ये चीज़ों में टाइम लगाइए आप, बिकॉज अदरवाइज इट्स जस्ट कैश बर्न, यू विल बी एंडिंग अप बर्निंग मनी ऑन ऑल दीज डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, नहीं होगा इतना बेनिफिट। सी आप बताओ इफ आई एम रॉन्ग। Pardon, sir? I know that you also realize, probably you realize the same thing. Yeah, we realized. Like last time, you asked me like whether I'm part of a Success Gan and all. I did a lot of courses in Success Gan. I was also did one that Siddharth Rajshekar and all those guys. You know, you were referring also. They are very good. Know what they are doing and how that be benefited to us and all. I feel number one is to, first of all, organize yourself, streamline your processes. You will get enough time, and you invest that time to actually build credibility by, showing your expertise. That is what you should do, and then probably you can advertise, because till the time you have the system in place where you can establish the credibility. Like from 2015 till now, like I was not really advertising anything. Even now, I don't really much advertise. So people come to me through referrals. Yeah. And that is the best way. Otherwise, why will anyone trust me when they don't know me? Yeah, you're right. So great talking to you, and I will. Neetu will reach out to you from my team. Yeah, I want your help, and please take care of us. No worries at all. And again, the best thing is that we have a team here, and the team is very knowledgeable. They are expert. You've seen Sujit, you've seen them training. Yes. You've seen Abhishek, you haven't seen probably yet. You have seen Anurag probably. Yeah, Anurag, we had a talk. We have a complete team of experts. You haven't even seen our programmers yet. These guys are crazy. Okay, so whatever needs to be done very easily and using less resources, less time and money, you can get it done easily through your team itself. Sure, sir. Sure. We will be with you, sir. Okay, Chandrasekhar. Nice talking to you. Thank you, sir. Thank you so much for joining us. నీ పేరు ఇక్కడ ఎట్లా ఎందుకు వస్తుంది? మన పేరు చేంజ్ చేయలేదు. అచ్చా, లాస్ట్ టైం నువ్వు అక్కడ చేసినావు. ఇప్పుడు వీళ్ళు మొత్తం డిఫరెంట్ ఉన్నారు. ఇది అట్లా కాదు, ఇది డిజిటల్ కాదు ఇదంతా. ఇది వెరీ మచ్ ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ ని స్ట్రాంగ్ చేయడం చెప్తారు. అదే కదా. नीतू, आप हो लाइन पे? हाँ जी सर। तो नीतू, फिर आपको इनको टेक केयर करना है, ठीक है? ठीक है सर। एक तो वो वीडियो मैंने बताया मीटिंग विद देम सर। हाँ, तो एक तो वो इनको भेजना है, ठीक है? तो एक तो वो आपको करना है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की, कहाँ से निकालेंगे वो। ठीक है सर। मैं अभी देख के बता रहा हूँ आपको। और एक ना अभिषेक सर से बात करनी है, मैं ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? अभिषेक सर को मैं ना गाइड कर दूंगा कि ये इनका ना वीडियो उनको दिखा देंगे छोटा सा, कि ये क्या चाह रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से उनको दिखा देंगे कि ये आप बिल्ड कर सकते हो टेक मास्टरी के अंदर, ठीक है? तो इनको ना आप टेक मास्टरी के लिए क्लोज करेंगे। देखो, बात तो होगी, आपने देखा मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। हाँ जी सर, आप पहले चैलेंजेस पूछते हैं जो कि मैं नहीं पूछ रही थी, तो अब मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, अभी तो और बहुत सारे लोगों से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तरुणा, आप थे मीटिंग के अंदर? यस सर। आपको समझ में आ रहा है? सर मैं बस बीच में 10 मिनट्स के लिए नहीं थी, वो एक क्लाइंट का कॉल आ गया था। कोई बात नहीं। तो आपको समझ में आया ना किस तरह से बात करना है? हाँ जी सर। लोगों ने टेक मास्टरी अटेंड करना शुरू कर दिया? हाँ जी सर। तो उसको ना फटाफट देखिए, ठीक है ना? आपको कोई टेक्निकली नहीं होना है, आपको कि लगाना थोड़ी है उसको, बट उसका पर्पस क्या है ये समझना है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने काम दिया था आप लोगों को वो अपडेट करने का शीट को, वो हुआ नहीं अभी तक, क्या बात है? आपको काम दिया था सिद्धार्थ ने? सर शीट अपडेट करने का, सीआरएम अपडेट करने का नहीं, ये वाली शीट अपडेट करने का। रमा, किसको दिया था काम? सिद्धार्थ ने दिया नहीं क्या? मुझे दिया था। हाँ, तो वो सर जो दिया था ना, वो तो मैंने फिनिश कर दिया था और अपडेट भी कर दिया था। अच्छा, इसमें फोटोज नहीं आ रहे? हाँ, वो सिद्धार्थ ने बोला था कि रमा तू प्रॉब्लम और सोल्यूशन डाल दे, फोटोज में अपडेट करूंगा। अच्छा, ठीक है।
तो ये ना गर्ल्स हम आपके लिए बना रहे हैं ये, तो इसके अंदर ना क्या है कि आपको दिखाई देगा ऐसे कि क्या क्या इश्यूज होते हैं, जैसे पेमेंट में, फाइनेंस में क्या इश्यूज होते हैं। ओके, तो आप ना उनको थोड़ा सा वो कर सकते हो कि सर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके बाद में ना फिर सोल्यूशन भी बता सकते हैं, और हम क्या क्या स्क्रिप्ट्स हैं हमारी जो ये काम करती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और ये अलग अलग इश्यूज हैं, फाइनेंस में क्या इश्यूज हैं तो ये पता लग जाएगा आपको, मैं भी समझा दूंगा। एचआर में क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है, फिर मैनेजमेंट में क्या इश्यूज होते हैं। प्लस अभी ना हम लोग हर हफ्ते दो चार ऐसे मीटिंग्स करेंगे, ठीक है ओके रमा। सर। ओके सर। आप ना क्या करो, अपने सारे क्लाइंट आइडेंटिफाई कर लो। अभी आज जो सबसे पहले जो क्लाइंट आए थे, क्या नाम था उनका, जो एजिड से थे? उनका नाम था शोना SD सिंह। पाठक। हाँ, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सो उन्होंने ना पहले ही मुझसे बात की थी, तो वो बता रहे थे कि उनको टेक मास्टरी नहीं करना, उनको जी सूट करना है, साइबर सिक्योरिटी करना है और इसके साथ। हाँ, तो देखो आपको उनसे बात करके क्या लगा कि वो टेक मास्टरी करेंगे? सो मुझे सर वो लगा जी कि वो सूट नहीं करेंगे। के बाद वो कर सकते हैं सर, जी सूट के बाद। हाँ, तो एग्जैक्टली तो समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो वो जैसे आपने कहा ना जी सूट के बाद कर सकते हैं, तो उनको जी सूट करा दिया, ऑनलाइन वर्जन दे दो जी सूट का, समझ रहे हो आप ठीक है रमा। सर। उनको ना यस सर। वर्जन दे दो, ऑनलाइन वाला वर्जन दे दो, और उनको जी सूट का उनको कहो कि जब लाइव होगा तो लाइव भी कर लें, ताकि उनका मिस ना हो बाय एनी एनी चांस, ठीक है। सर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ना 1 डे की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ना वो टेक मास्टरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तभी जैसे सबरवाल सर है। अच्छा, व्हाट अबाउट सबरवाल सर? सर सबरवाल सर तो इंटरेस्टेड है, उन्होंने काफी सारी वर्कशॉप्स की हमारी 1 डे की ना, तो मैंने उनको HRMS के बारे में भी बताया था, तो उन्होंने बोला वो उसके लिए उन्होंने एनरोल कर दिया था। बाकी टेक मास्टरी का वो यही वाला बैच करने वाले थे, वो डेट का इशू की वजह से नहीं कर पाए तो वो। अभी अब जो हो रहा है उसको ना उनको क्लोज करा लो। तो अभी क्या करना हम्म, चाहते हैं हम कि अभी ना मैं सारे जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उन सबकी लिस्ट निकाल लो। हर हफ्ते मैं काफी टाइम ब्लॉक कर लेता हूँ, इन सबसे बात कर डालते हैं, ठीक है। एक तो आपको पता लग जाएगा बात कैसे करनी है, आपको समझ में आ रहा है ना मैं जिस तरह से बात करता हूँ, हाँ जी सर। यस ठीक सर। है। जी सर। तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, प्लस ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो टेक एसेंशियल में देख लो कौन कौन है। अच्छा, जो लोग तुम्हें लगता है कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, तो उनसे बात करने का फायदा नहीं है। यस सर। तो जिनमें आपको थोड़ा पोटेंशियल लग रहा है ना, उन्हीं से बात करवाना मेरी। ठीक है सर। ओके सर। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन लोग हैं? सर मुझे ना आपसे एक सार्थक खट्टर सर से बात करानी थी। हम्म वो उनका क्या है, उनका ना टाइमिंग इशू रहता है, उन्होंने टेक एसेंशियल वर्कशॉप में एनरोल कर लिया पर वो अटेंड नहीं कर पाए एक भी डेज। उसको ठीक छोड़ है, तो वो ऐसे बोल रहे थे बंदे को रमा तो कोई ऐसे इशू नहीं है, मैं ऑनलाइन कर लूंगा। पर वो अब ना वो टेक मास्टरी के लिए एनरोल करेंगे 29 अक्टूबर वाली। हम्म और वो ये भी बोल रहे थे कि रमा मेरा एक होटल भी है, आप लोग IT वगैरह में भी वर्क करते हैं, तो मुझे पूरा IT इक्विपमेंट वगैरह सेटअप वगैरह भी करवाना है। तो ठीक है, फिर मेरी बात करा देना। तो ना ठीक है सर, आप मैं लोग नंबर शेयर आइडेंटिफाई, कर दूँ। नहीं नंबर नहीं शेयर करना, ऐसे ही बात कराओगे आप। अब हम जूम पे भी करेंगे, आप सब लोग साथ में होंगे और हम ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। ये आधा आधा घंटा बात करने का सिस्टम ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। एक तो आपको भी पता लग जाएगा बात क्या हुई है, नहीं तो क्या होगा, मैं बात कर लूंगा, आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। भाई अभी तक तो ऐसे ही होता रहा है ना कि सिद्धार्थ ने बात कर ली, आपको थोड़ी पता लगा कि क्या बात हुई है, राइट। तो ऐसे आपने ज्यादा सीखा ना आज, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ना इसी तरह से मेरे साथ लाइन पे आइए, तो अपनी लिस्ट बना लीजिए। नीतू मुझे आपसे भी चाहिए, तरुणा आपसे भी चाहिए, किस किस से आप बात करना चाहते हो, जी सर। ओके सर। ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं है, अगर है तो मुझे बता देना जो तुम्हें लगता है कि हाँ इनसे बात करना चाहिए, जो जिन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया था। और ठीक है स्पेशली सर। वो वाले लोग जो टेक एसेंशियल वाले हैं, ठीक है। ओके। तो ठीक है सर। जो लोग टेक एसेंशियल में थे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक लेवल आ चुका है, वो हमसे जानते हैं ना, हमसे बात की भी है उन्होंने, am I right? सर जिन्होंने ये बोला था कि हम नेक्स्ट टेक एसेंशियल के बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं, अभी हमारी डेट्स में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अभी आप बिजी और समथिंग, अभी तो हम टेक उन एसेंशियल अभी हम नहीं कर रहे हैं और अच्छा टेक एसेंशियल नहीं कर रहे। हम्म, ओके। इस महीने तो है नहीं ना, इस महीने तो नहीं, आई वाज टेक। आस्किंग कि आप उनसे भी बात करेंगे क्या, या ओनली हु हैज अटेंडेड द टेक एसेंशियल। जो लोग टेक मास्टरी में तुम्हारे लिए प्रोस्पेक्ट हैं,
या जो लोग टेक एसेंशियल कर चुके हैं, मतलब टेक मास्टरी प्रोस्पेक्ट से ही बात करना चाह रहा हूँ मैं फिलहाल। करुणा, टेक मास्टरी के लिए जो पोटेंशियल है उनसे बात कर सकता हूँ मैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? करुणा, करुणा, रमा क्या हुआ है? करुणा को आवाज नहीं आ रही क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी सर, आ रही है। करुणा, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियरली आ रही है सर आपकी हमें वॉइस। आ रही है। हाँ, तो क्या हुआ? करुणा को क्या हुआ? चलो एनीवेज, आपको समझ में आ गया है? सर, जो भी हाँ हमारे जी सर। टेक मास्टरी के प्रोस्पेक्ट्स है या फिर जिन्होंने टेक एसेंशियल भी अटेंड किया है, जो तो इंटरेस्ट शो किया है अगर जिन्होंने, टेक एसेंशियल अटेंड किया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टेक एसेंशियल नहीं भी अटेंड किया है पर वो जो के प्रोस्पेक्ट्स है। लिए प्रोस्पेक्ट है तो मैं बात कर सकता हूँ। अगर तुम्हें उनमें ठीक है दम सर। लगता है तो, अगर तुम्हें उनमें दम लगता है तो, अगर तुम्हें लगता है कि उनमें दम ही नहीं है, ठीक है ना, पहले अपने को चेक कर लो ना कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। मतलब एक जो पे ही नहीं कर, हाँ, हाँ, जो सर पे ही नहीं कर पाएंगे फिर उनसे बात करने का फायदा नहीं है अभी। एग्जैक्टली मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग पे नहीं कर पाएंगे ना, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। यू गेटिंग मी? यस सर। तो जो लोग पे ही नहीं कर पाएंगे उनसे बात करने का मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं ना एक वो वीडियो दे रहा हूँ इनको। हाँ सर, वो सर का मैसेज भी आया मेरे पास कि रमा प्लीज शेयर द वीडियो। हाँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। Tech alumni, I've already shown you how to do that. तो आप लोग Google Forms और Google Forms के साथ में एक एड ऑन है फॉर्म म्यूल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट उनको भेज भी सकते हैं और पॉलिसी पे एग्रीमेंट ले भी सकते हैं। तो आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू हु आर पार्ट ऑफ माय टेक मास्टरी प्रोग्राम ऑलरेडी नो हाउ टू डू दिस। एक सेकंड ठहरो, मैं ना तुम लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चैट पे डाल दूँ भी, आप चैट पे समझ जाओगे? यस सर। चैट से कॉपी कर लोगे? तो तुम में सच में कौन है? रमा तुम हो कि नीतू है? सर कोई इशू नहीं है, नीतू हैंडल कर लेगी अगर नीतू बात करना चाहती है तो। नहीं, तुम बात कर रही हो क्या ऑलरेडी? हाँ सर। तुम बात कर रही हो तो तुम ही कर लो, मैंने डाल दिया है तुम्हारे को, यूट्यूब का लिंक डाल दिया है, ठीक है ना। अगर वो ऑलरेडी तुम्हारा नंबर जानते ही हैं और तुमसे बात कर ही रहे हैं तो तुम कर लो, ठीक है ना, क्योंकि वो सिद्धार्थ का नाम ले रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। मैंने नंबर आपको ये यूट्यूब का लिंक डाल दिया, ये सीधा यहीं से शुरू होगा। वीडियो तो बड़ा है ये, बट ये सीधा एस्टैब्लिश मीटिंग रिदम से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर कर लो और एक काम और करना, फिर अभिषेक सर से ना बात करा देना उनकी, ठीक है। तो मैं अभिषेक को बोल दूंगा कैसे बात करनी है, ठीक है। मैं अभिषेक को बोल दूंगा कैसे बात करनी है, ठीक है। तो कल सुबह की मीटिंग में एक बार आ जाना, 10:30 बजे जो मीटिंग होगी हमारी 10:20 के करीब, तभी मैं अभिषेक को बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए एक बार आ जाना, 5 मिनट के लिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है गर्ल्स, ओके, टेक केयर। ठीक है, ओके सर। ओके जी, सर बाय। सर। हाँ सर। हाँ, बोलो। सर एक्चुअली सार्थक सर को आपसे आईटी के रिगार्डिंग बात करनी है, तो भी नंबर शेयर नहीं कर सकती आपका? हाँ नहीं, आईटी के रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शेयर कर देना, मेरे को नंबर दे देना, मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है सर, आपको नंबर शेयर कर दूंगी। कल करूंगा लेकिन आज नहीं। ओके ठीक है सर, मैं उनको कल बोल देती हूँ, कल कॉल आएगा सर आपको। ठीक है।